Okay, friends, the universe of spirituality. By now, you have become familiar to UIS group. We most cordially welcome you all to the second of the 5 lectures that Honorable Arya Raviday Gupta ji has kindly agreed to deliver on Swami Dayananda Saraswati's profound book, Satya Prakash. As mentioned at the beginning of the first lecture on June 14, Satya Prakash presents Hinduism through the lens of Vedic principles, emphasizing monotheism, rationality, and the rejection of superstitions. Through its 14 chapters, the book explores diverse themes, as we talked last time, such as relationship between religion and science, devotion and intellect, reviews of various religious beliefs, and provides a manifesto for civilizational renewal, blending spiritual clarity with social and political reform. That was very unique of Dayananda Saraswati. Arya Ravidev Guptaji's first lecture on June 14 provided an overview of the book Satyartha Prakash. He noted that the main goal of Maharishi Dayananda Saraswati's writing this book was to reform the society and revive the practice of Vedic wisdom. And the book aimed to eliminate superstitions, false beliefs, and meaningless customs while promoting rational thinking and the brotherhood of humanity. That is what we need today. It advocated worship of one God, the scientific interpretation of the Vedas, and the abolition of the caste system. Arya Raviday Guptaji's today's lecture, the second one, will cover chapters 10 and 6 of the book. Briefly, chapter 10 discusses desirable and undesirable conduct, achar and anachar, as well as permissible and forbidden diets, bhaksha and abhaksha food. It emphasizes the importance of righteous actions, refined speech and manners, and association with learned individuals, and a love for true knowledge. I think we'll hear more on this from Dr. Ravi Devji. Today's lecture will also talk about chapter 6 of Satyartha Prakash, first 10 and then 6, which focuses on the science of government and the duties of rulers. It discusses the qualifications of a true leader, emphasizing that a ruler should be just, impartial, well-educated, and a protector of all citizens. Swami Dayananda Saraswati's Satyartha Prakash, especially chapters like 6 on governance, had a profound influence on India's socio-religious and political reform movements in the 19th and early 20th century. And that led to the founding of Arya Samaj in 1875. And this movement became a powerful force for social modernization in colonial India, especially in the northern region. It is often said that understanding Satya Prakash requires a critical mind and a thoughtful approach, a scientific approach, given its complex philosophical and social themes. We are indeed fortunate to have Arya Sri Ravidev Gupta ji to help us understand the deeper meanings of this book. We have already introduced Arya Gupta ji to most of you the last time, so I'll be brief. He comes from a deep understanding of Vedic and Sanatan Hindu philosophies, scriptures, and religious literature and practices. As I said before, he is president of Dakshin Delhi Ved Prachar Mandal, a federation of 50 Arya Samaj units in South Delhi, which is engaged in the propagation of Vedic philosophies. I think let them go on mute. Everybody should go on mute. Yeah. Vedic philosophy, scriptures, religious literature, and practices. He is president of Dakshin Delhi Ved Prachar Mandal, a federation of 50 Arya Samaj units in South Delhi, which is engaged in the propagation of Vedic philosophies, as well as general secretary of Delhi-based Veda Samsthan, a research institute in Vedas. Arya Gupta ji, in his capacity as the chair of Hindu Punarutthan Sangha, works on making Bharat a self-reliant Rashtra governed by its Sanatan traditions. Professionally, Arya Gupta ji is a cost and management consultant and chairperson of Viput Group of companies that provides technology and materials to the construction industry. So this is a brief introduction. I think most of you know him very well. He's a great orator, a great student of Vedas, and a profound narrator of Arya Samaj's principles. So with this brief introduction, Arya Gupta ji, floor is yours. Please go ahead. Thank you. Thank you very much.
Let everybody go on mute, just so that the presentation is not disturbed. Thank you. Thank you, Ramesh Deshpande ji. I greet you all, whosoever have congregated for this lecture session. I have acknowledged presence of certain few friends. I wish to attendance of my elder brother, Shri Ramesh Chandraji Jain from Germany, and Shri S.K. Sharma, Shri Mukesh Kumar ji, Shri Mohan Sethi, my friend, Anil Kakkar, he is my son, Chanda from Bombay, my daughter, Anuradha, Dr. Anuradha Anand, and Rajeshwar Sharan Singhal from Ghaziabad, my nephew. And all those whosoever have joined from US, I greet everybody to this second session of the lecture about a very discussed book, Satyarth Prakash, about which Ramesh Deshpande ji have told you several times. This is one book which Swami Dayanand ji wrote in his lifetime, and probably it is an ageless book. तो आज हम इसी अजेय जो कालजयी पुस्तक है, कालजयी का मतलब है कि जब उन्होंने इस पुस्तक को लिखा था उस समय भी बहुत रेलेवेंट थी, उसके बाद में भी इसकी रेलेवेंस बहुत ज़्यादा बढ़ी, और आज भी इसकी रेलेवेंस हमेशा हमेशा के लिए, जब तक भारतीय संस्कृति रहेगी, इसकी रेलेवेंस बनी रहेगी। तो मैं एक ऐसी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश, मैं आप लोगों के सामने, जिन लोगों ने नहीं देखी है उनको ये दिखा रहा हूँ। ये पुस्तक एक ऐसी पुस्तक है जिस पुस्तक को देखने मात्र से हमको पुण्य का लाभ होता है, और अगर कोई व्यक्ति सौभाग्य से इसको पढ़ लेता है तो पढ़ने के बाद में उसके ज्ञान का प्रचार और प्रसार इतना अधिक होता है, इतनी वो स्वयं कल्पना भी नहीं कर पाता। पिछले व्याख्यान में हम लोगों ने इसकी भूमिका और उसके अंदर में लेखक ने, महर्षि स्वामी दयानंद ने क्या प्रयोजन से इस पुस्तक को लिखा, उसके बारे में बहुत स्पष्ट और बड़े विस्तार से हम सब लोगों को जानकारी दी। महर्षि ने बार बार इस बात को बताया कि मैं चाहता हूँ कि इस पृथ्वी के ऊपर में मनुष्य मात्र में एक ऐसी शांति स्थापित हो कि जो मनुष्य मात्र के लिए ईश्वर ने धर्म का विधान किया है। मैंने संभवतः पहले भी एक दो बार चर्चा की है किसी अपने व्याख्यान में। ये जो धर्म शब्द है, इसके बारे में जितनी हमको जानकारी है उससे ज्यादा हम लोगों को कंफ्यूजन है। ईश्वर ने प्राणी जगत में हर योनि का अपना एक निश्चित धर्म बना के भेजा, तो स्वाभाविक है मनुष्य योनि का भी धर्म जो है वो मानव धर्म है। तो इससे एक बात स्पष्ट होती है कि दुनिया के किसी भी कोने में जहां भी किसी मनुष्य ने जन्म लिया है इस सृष्टि में, वो किसी भी देश का हो, किसी भी प्रदेश का हो, उन सब का धर्म ईश्वर की दृष्टि में तो एक ही है, वो मानव धर्म। और उसी मानव धर्म को ईश्वर ने कृपा करके वेदों के माध्यम से ऋषियों के द्वारा संसार को ज्ञान के लिए प्रकाशित किया। एक तरह का वो कोड ऑफ कंडक्ट है, ह्यूमन कोड ऑफ कंडक्ट। तो एक बात तो इससे बड़ी स्पष्ट होती है कि जिन जिन लोगों ने उन वेदों के बारे में जाना नहीं, या जानने के बाद भी उनके अपने मन में कोई विचार उठे, उन वेदों को छोड़ के उन्होंने फिर अपने ग्रंथ जो हैं वो दोबारा अलग से लिखे, तो स्पष्ट है कि वो वेदों से थोड़ा थोड़ा दूर चले गए। वेद एकमात्र ऐसा पुस्तक है जिसको ऋषि दयानंद ने लिखा है कि सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। इसका प्रमाण वो बार बार इस सत्यार्थ प्रकाश के अंदर देते हैं। अर्थ यह है कि वेद के मंत्रों के सत्य अर्थों को प्रकाशित करना। जिस प्रकार से ऋषियों के माध्यम से ईश्वर ने वेदों को प्रकाशित किया था ज्ञान स्वरूप, उसी प्रकार से महर्षि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना से कुछ वर्ष पूर्व
इस सत्यार्थ प्रकाश को भी वेदों के मंत्रों के सत्य अर्थ को प्रकाशित करने के उद्देश्य से इसको लिखा। उन्होंने भूमिका में बड़ा स्पष्ट चाहा। उन्होंने कहा हर मत में, हर मतांतर में विद्वान लोग होते हैं और सामान्यतः वो वैदिक मंत्रों के अर्थों को जानते भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई पूर्वाग्रह होता है या कोई स्वार्थ होता है जिसके कारण वो सत्य को छोड़ के असत्य की ओर झुकने की प्रवृत्ति बना लेते हैं। और यही कारण है कि लोगों ने सत्यार्थ प्रकाश के बारे में जितना जाना उससे ज्यादा इसके बारे में कंफ्यूजन बहुत क्रिएट हुआ। और आर्य जगत इस बात को जानता है कि सत्यार्थ प्रकाश का प्रचार आर्य समाज के लोगों ने जितना किया उससे कई गुना प्रचार उन लोगों ने किया जिन्होंने इस सत्यार्थ प्रकाश का विरोध किया। और विरोध इस सीमा तक किया कि बहुत से मतावलंबियों ने सत्यार्थ प्रकाश के ऊपर प्रतिबंध लगाने के लिए, जिस समय हमारा देश ये स्वतंत्र नहीं था, अंग्रेजों की दास्तां में था, उस समय कई बार अदालतों में इसके लिए प्रतिबंध लगाने के लिए पिटीशंस लगाई गई। लेकिन सत्य तो विजय होता है, ट्रुथ ट्रायम्फ। सभी बोलते हैं सत्यमेव जयते। और वास्तव में ईश्वर की ये व्यवस्था भी है कि किसी भी कोर्ट के अंदर में, वाद के अंदर में कभी किसी मत को सफलता नहीं मिली। इस्लाम के लोगों ने विशेष करके इस पर प्रतिबंध लगाने के बहुत प्रयास किए। हमारे ही देश के अंदर में जो लोग अंधविश्वास में और पाखंड में बहुत ज्यादा डूबे हुए थे, उनको ये लगता था कि हमारे स्वार्थ पे, हमारे हितों पे इस पुस्तक को पढ़ने से लोगों को कुछ ज्ञान होगा तो चोट लगती है। तो अपने स्वार्थों के ऊपर में आंच आते देख के उन लोगों ने भी भयंकर इसके बारे में दुष्प्रचार किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना सत्यार्थ प्रकाश के बारे में लोगों को जानकारी है उससे कई गुना इसके बारे में भ्रांतियां हैं। तो हम लोगों ने ये जो व्याख्यान माला माननीय रमेश देशपांडे जी के आदेश से आरंभ की है, ये केवल इसलिए की है कि एक बार जितने भी हमारे श्रोता हैं उस सत्यार्थ प्रकाश के वास्तविक प्रयोजन को, उसके अर्थों को और उसके लिखने के पीछे जो ऋषि का मंतव्य था, एक बार उसको कम से कम जान तो लें। और मुझे ये विश्वास है कि जब हमारे इन 5 व्याख्यानों के बाद में हमारे ही इन श्रोताओं को मन में एक जिज्ञासा उठेगी कि जब इस पुस्तक के बारे में इतनी चर्चा सुनी है तो इस पुस्तक को एक बार दर्शन भी कर लिया जाए और इसको एक बार पढ़ने का प्रयास भी किया जाए। तो इसी अपेक्षा से, इसी आशा से मैं आज इस व्याख्यान माला के दूसरे व्याख्यान में इस सत्यार्थ प्रकाश के 10वें समोल्लास और षष्ठम समोल्लास, छठा समोल्लास, इन दो की चर्चा आपके सामने करने वाला हूं। जैसा अभी रमेश जी ने भी संकेत किया और आपने निमंत्रण में भी देखा है, जो हमारा फ्लायर है इनविटेशन का, उसमें इन समोल्लास के विषय को लिखा। ये जो 10वां समोल्लास है, इस समोल्लास को सबसे पहले पढ़ के सुनाने के पीछे एक बहुत बड़ा हेतु है। जितने भी आर्य जगत में विद्वान हैं वो इस बात को जानते हैं कि सत्यार्थ प्रकाश को अगर पढ़ना आरंभ करना है तो जैसा सामान्यतः हम पहले चैप्टर से शुरू करते हैं और लास्ट चैप्टर तक जाते हैं, ये सत्यार्थ प्रकाश के बारे में ये प्रैक्टिकल नहीं है, व्यवहारिक नहीं है और ना एडविजिबल है। इसके अंदर में जिस क्रम से ये एडविजिबल है उसी क्रम से हमने अपने लेक्चर्स को उसी के साथ एडजस्ट किया। तो ये मैं आपको एक इम्प्लाइड वो दे रहा हूँ मैसेज कि जब भी सत्यार्थ प्रकाश आपको पढ़ना हो तो सबसे पहले उसकी भूमिका, उसके प्रीफेस को पढ़ेंगे और उसके बाद जब पढ़ना आरंभ करेंगे तो दशम समोल्लास को सबसे पहले पढ़ेंगे, क्योंकि वो हमारे सभी के जीवन के विभिन्न पहलुओं के साथ जुड़ा हुआ विषय है। तो जब हमको अपने जीवन के साथ जुड़े हुए विषयों को देखने को मिलता है तो रुचि भी ज्यादा होती है और बहुत से ऐसे विषय जिनके बारे में बहुत लोगों के बारे में गलत फहमियां होती हैं उनका भी निराकरण होता है। ये जो दशम समोल्लास है इसका शीर्षक ही ये है कि आचार और अनाचार क्या हमारे आचरण में उचित है और क्या हमारे आचरण में उचित नहीं। आचार का मतलब है जो हमारे आचरण में होना चाहिए और अनाचार वो जो हमारे आचरण में नहीं होना चाहिए। उसके बाद में स्वामी जी लिख रहे हैं भक्ष्य अभक्ष्य विषय।
तो केवल इसके अंदर दो ही विषय स्वामी जी ने प्रमुखता से विस्तार में लिए हैं कि हमारा आचरण कैसा होना चाहिए और हमारे आचरण में कौन कौन सी ऐसी चीजें जो नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार से उन्होंने लिखा कि हमारे लिए भोजन में क्या चीज ऐसा है जो भक्ष्य पदार्थ है, जो खाया जा सकता है, और कौन सा ऐसा है जिससे हमको परहेज करना चाहिए, जिसको नहीं खाना चाहिए। तो आइए मैं इस दशम समोल्लास का श्री गणेश करता हूँ। सबसे पहले स्वामी जी ये लिखते हैं कि धर्म युक्त कर्मों का आचरण, सुशीलता, सत्पुरुषों का संग और सद विद्या के ग्रहण में रुचि रखना, ये आचार है। इसका मतलब ये हुआ कि क्या क्या चीजें हैं स्वामी जी ने अपनी ओर से एडवाइस की हैं, परामर्श दिया है, वो बड़ा स्पष्ट हो गया कि जितने हमारे कर्म हो वो धर्म के अनुसार हों। कोई भी कर्म जो अधर्म की श्रेणी में आता है उसको हम ना करें। वो हमारे आचरण में दिखना चाहिए। आचरण का मतलब ये है कि हमारे नित्य प्रति के व्यवहार में, हमारे डेली कोर्स में, उनके अंदर में ये दिखना चाहिए कि ये व्यक्ति जितना भी अपना व्यवहार करता है, व्यापार करता है, लोगों से विचार करता है, ये सब जो कुछ भी करता है वो धर्म के अनुसार करता है। तो स्वाभाविक है जब हम धर्म के अनुसार करने की इच्छा रखेंगे तो हम धर्म के बारे में पढ़ने की भी इच्छा रखेंगे। तो स्वामी जी ने एक प्रकार से प्रकारांतर से ये बताने का प्रयास किया कि जब हमारे कर्म धर्म अनुसार होने हैं तो हम धर्म की सही व्याख्या को भी जानें। वो मेरा आज का विषय नहीं है, उसके लिए मैं अपने सभी श्रोताओं से अनुरोध करूंगा कि वो इसके बारे में जानने का भी प्रयास। उन्होंने कहा सुशीलता, शील होते हैं जैसे हम लोग जानते हैं पंचशील, इसलिए अष्टशील। तो जो हमारे व्यवहार के अंदर में शील युक्त आचरण है उसको करते हैं तो हम उसको सुशील बोलते हैं। और कोई व्यक्ति जो शील के प्रति आचरण करता है तो हम ये कहते हैं कि ये व्यक्ति शील शील का उल्लंघन कर रहा है। स्वामी यहाँ पे हमारे भारत की राजनीति में हमको मालूम है, पंडित नेहरू जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक पंचशील बनाया था जो चाइना के साथ उन्होंने उसको कोशिश किया था किसी भी प्रकार से कोडिफाई करके और उसको इम्प्लीमेंट करने का। पर चूंकि वो अच्छी भावना से दोनों ओर से नहीं हुआ, जी की अच्छी भावना रही होगी लेकिन चाइना ने कभी उसको ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो उस पंचशील का क्या हाल हुआ वो हम सब लोग जानते हैं। तो ऋषि दयानंद तो कह रहे हैं कि हमारे व्यवहार में, आचरण में सुशीलता होनी चाहिए, सत्पुरुषों का संग होना चाहिए। सत्पुरुष का अर्थ है जो पुरुष सत्य को जानते हो, उनका संग करना ही सत्संग कहलाता है। उनका हमको निरंतर सत्संग करता रहना चाहिए। सद विद्या के ग्रहण में रुचि होनी चाहिए। विद्या दो प्रकार की है, एक तो वो विद्या है जो सत्य के जानती बताती है, एक वो विद्या है जो हमको सत्य से दूर ले जाती है। तो जो सत्य से दूर ले जाती है वो कहने को विद्या है लेकिन वास्तव में वो अविद्या है। अविद्या का मतलब है किसी भी चीज का यथार्थ ज्ञान न होना। यथार्थ का मतलब है जो चीज जैसी है, जैसा पदार्थ है उसको वैसा ही वर्णन करना, उसको यथार्थ ज्ञान कहते हैं। और वो एक प्रकार से सत्य का ही अनुमान होता है। तो स्वामी जी ने बड़ा स्पष्ट कर दिया कि जो इन लक्षणों से युक्त होगा वो तो आचार है, और जो इन लक्षणों से वियुक्त होगा, इनके विरुद्ध व्यवहार करेगा, वो अनाचार है। आगे स्वामी जी कह रहे हैं जिसको हृदय अर्थात आत्मा से सत्य कर्तव्य जाने वही हमारे लिए धर्म है। इतनी ब्रीफ उन्होंने डेफिनेशन धर्म की दी है कि जिसको मेरा हृदय, मेरी आत्मा स्वीकार करती हो कि हाँ ये वास्तव में ये बात ठीक है। उन्होंने एक जगह ये भी लिखा है कि मनुष्य मात्र क्या, जो आत्मा है वो सत्य को जानने हारा है। उन्होंने हर एक को ये क्लीन चिट दी है कि दुनिया का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति भी, जिसके आचरण में दुष्टता, राक्षसी प्रवृत्ति दिखती हो, लेकिन जो ईश्वर की बनाई हुई आत्मा उसके शरीर में निवास करती है वो सदा सत्य होती है, पवित्र होती है, शुद्ध होती है, बुद्ध होती है, और वो सत्य को जानने वाली होती है। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि बस कसौटी एक ही है, कोई भी व्यक्ति को अगर जानना है किसी काम को करने से पहले कि ये धर्म है का नहीं, तो वो अपनी आत्मा से पूछ ले। आत्मा स्वीकार करती है हाँ ये बात ठीक है, आप जो कर रहे हो ये उचित है, तो वो धर्म है। तो उन्होंने कहा जिसको मेरा हृदय स्वीकार करे, मेरी आत्मा स्वीकार करे, उसी को सत्य कर्तव्य जाने,
और उसी को धर्म माननीय माने और करणीय माने। इसका मतलब यह है कि धर्म और कर्म वो हमारा आत्मा की स्वीकृति, आत्मा की अनुमति से होना चाहिए। आगे उन्होंने इसका और स्पष्टीकरण दिया कि आत्मा की अनुमति से जो काम होता है उसका लक्षण क्या है। उन्होंने कहा जिस जिस कर्म में अपना आत्मा प्रसन्न रहे, अर्थात ना हमारे मन में कोई भय पैदा हो, ना हमारे मन में किसी प्रकार की दुविधा या शंका हो, और ना मेरे मन में किसी प्रकार की लज्जा हो। जब कोई मैं गलत काम करता हूं तो समाज से छिप कर करने की प्रवृत्ति मनुष्य की होती है। वो चारों तरफ ये देखता है, कोई देख तो नहीं रहा, और जब नहीं देख रहा तो वो दुष्कर्म करने में प्रवृत्त भी हो जाता है। तो स्वामी जी ने स्पष्ट कहा, जिस कार्य को किसी से छिपा के हमको करना पड़े, जिसको करने में हमको अपने हृदय में लज्जा का अनुभव हो रहा हो, जिसको करने में हमारे मन में किसी प्रकार का भय लगता हो कि कहीं ये कानून के विरुद्ध तो नहीं है, समाज के नियम के विरुद्ध तो नहीं है, हो सकता है मनुष्य जाति के जो नियम बने हुए हैं धर्म उसके विरुद्ध तो नहीं है। तो जब इस प्रकार का भय हो, शंका हो, मन में दुविधा हो, डायलेमा हो कि ये गलत है या सही है, तो समझ लीजिए कि वो कर्म जो है वो सेवन करने के लायक नहीं है, उचित नहीं है। तो धर्म की परिभाषा भी स्वामी जी ने बता दी, साथ में ये भी बता दिया कि इस कसौटी को कसने के लिए कौन से लक्षण। आगे स्वामी जी ये कह रहे हैं कि जितने ये वेद हैं, इन वेदों का नाम श्रुति है। इस श्रुति के बारे में पहले भी कभी आप लोगों के सामने चर्चा आई होगी कि जब ये वेद ईश्वर ने ऋषियों के माध्यम से प्रकाशित किए थे तो कोई लिखित आकार इनका पुस्तक का स्वरूप नहीं था। ऋषियों के दिमाग में आई, उनको एक तरीके से जैसे कि बोलते हैं, उर्दू में बोलते हैं इल्हाम, या एक प्रकार से जो बोलते हैं कि लोगों को एक रियलाइजेशन हुआ, और वो डिवाइन रियलाइजेशन, उसके आधार पर वो वेद जो है उनके हृदय में अंकित हो गए, मस्तिष्क में अंकित हो गए, और उन्होंने बोल के ओरली उसको अगली पीढ़ियों को बताना आरंभ किया। और ये क्रम जो है ये कितनी ही पीढ़ियों तक चला। तो श्रुति वो जिसको सुनते हैं, जो सुन के आगे बताया जाता हो और आचरण होता हो, उसको श्रुति। तो वेदों का ये नाम है श्रुति। और उसके बाद में वेदों के आधार पे जितने भी धर्मशास्त्र बनाए गए हैं उनको ऋषि दयानंद ने कहा है उनको स्मृति कहते हैं। जैसे हम मनुस्मृति की बात करते हैं, इसी प्रकार से और भी हमारे यहाँ बहुत सारी स्मृतियां हैं, याज्ञवल्क्य स्मृति है, तो अनेकों स्मृतियां हैं। तो ये स्मृतियां हमारी कोड ऑफ कंडक्ट होती हैं एक प्रकार की। जैसे हमारे यहाँ एक क्रिमिनल कोड होगा, एक क्रिमिनल प्रोसीजर कोड होती है, और एक क्रिमिनल एक्ट होता है। तो एक्ट को जो कोडिफाई करते हैं और उसका प्रोसीजर करते हैं उसको हम लोग प्रोसीजर कोड बोलते हैं। तो इसी प्रकार से वेदों का नाम श्रुति है, और उन्हीं के आधार पर बनाए हुए धर्म शास्त्रों का नाम स्मृति है। ऋषि दयानंद ने और अपने विषय को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा जो व्यक्ति लोग पूछते हैं कि भाई नास्तिक किसको कहते हैं, आस्तिक कौन है। हम लोग ये जानते हैं कि जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करता है उसको हम लोग आस्तिक बोलते हैं, और जो ईश्वर के अस्तित्व को ही नकारता हो उसको हम नास्तिक कहते हैं। उसमें हमारे ये सारे वामपंथी आते हैं, जितना कम्युनिस्ट वर्ल्ड है, लेफ्टिस्ट वर्ल्ड है दुनिया का, वो सारा का सारा ईश्वर पर विश्वास नहीं करता। और उन्हीं के प्रभाव से भारत के अंदर ही उपजे हुए दो इस प्रकार के मत हैं, एक जैन मत है, एक बौद्ध मत है। इनको भी नास्तिक मत कहा जाता है क्योंकि ये ईश्वर के अस्तित्व पे विश्वास नहीं करते। तो स्वामी जी इसको स्पष्ट कर रहे हैं कि जो ईश्वर के अस्तित्व पे विश्वास नहीं करता, स्वाभाविक रूप से वो वेदों की भी निंदा करता है। और ये वेदों की निंदा हमारे यहाँ प्रमाण है। हमारे यहाँ जब महात्मा बुद्ध उनको बोध हुआ और उन्होंने देखा कि इस भारत के अंदर में वेदों का नाम लेके लोग इतना भ्रष्ट आचरण कर रहे हैं, पशुओं की बलि दे के यज्ञ के अंदर उनका चढ़ा रहे हैं, तो उन्होंने लोगों से पूछा भाई ये सब क्या हो रहा है, ये तो बड़ा अनाचार है, हिंसा करके यज्ञ करना, ये कहाँ लिखा है। लोगों ने कहा जी ये वेदों में लिखा है। बस उस समय अगर महात्मा बुद्ध ने वेदों को पढ़ के उसकी पुष्टि कर ली होती कि क्या वास्तव में वेद में ऐसा लिखा है, तो संभवतः इतिहास कुछ और होता। लेकिन उन्होंने ना वेद को पढ़ने का प्रयास किया, ना वेद को पढ़ने की सामर्थ्य जुटाई, और उन्होंने सीधा एक घोषणा कर दी, वेदों में ये लिखा है तो मैं ऐसे वेदों को नहीं मानता हूँ। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि जो वेदों की भी निंदा करता है वो नास्तिक होता है। और इसीलिए उन्होंने आगे उसको और एलिसिडेट किया कि जो धर्म को जानने की इच्छा करे
उसके लिए वेद ही परम प्रमाण है। इसके बाद में स्वामी जी क्या कह रहे हैं कि आचार मनुष्य का कैसा होना चाहिए। वो कह रहा है जो इंद्रियां चित्त को हरण करने वाले विषयों में प्रवृत्त कराती हैं उनको रोकने का प्रयास। जैसे हम लोग योग की परिभाषा कहते हैं, चित्त वृत्तियों का निरोध ही योग कहलाता है। तो चित्त वृत्तियां, मनुष्य का जो चित्त है ये बहुत चंचल है और स्वाभाविक रूप से जो काम ऐसे हैं जो धर्म से वियुक्त हैं, धर्म के विरुद्ध हैं, उसकी ओर इसकी एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। लोग गलत काम की तरफ जो है जल्दी झुकते हैं और सत्य काम के करने के लिए जो उसकी पुरुषार्थ करना पड़ता है उससे थोड़ा बचने का प्रयास करते हैं। जिस प्रकार से पानी का स्वभाव होता है वो ढाल की ओर जाता है बिना परिश्रम के, स्वतः अपनी ग्रेविटी से। लेकिन अगर उसको ऊंचाई पे चढ़ना हो तो उस पानी के पीछे प्रेशर लगाना पड़ता है। यही मनुष्य की स्थिति है। मनुष्य सामान्यतः जो ऐसे विषय हैं जिनके अंदर में ज्ञान की अपेक्षा नहीं है, जिसके अंदर में कोई बुद्धि की अपेक्षा नहीं है, उन सरल कामों को करने की एक प्रवृत्ति रखता है, स्वाभाविक प्रवृत्ति। और उससे क्या होता है, वो शॉर्टकट के चक्कर में कई बार कहीं ना कहीं अपने लिए कोई ना कोई समस्या भी खड़ी करता है। पहाड़ों में जाते हुए लोग शॉर्टकट के चक्कर में कई बार दुर्घटना के शिकार होते हैं। इसी प्रकार से ये धर्म का आचरण है। अगर धर्म का आचरण हमको करना है और हम शॉर्टकट उसमें ढूंढने लगते हैं तो स्वाभाविक रूप से हम कहीं ना कहीं धर्म से दूर होते हैं। तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं, जो इंद्रियां हमारी इंद्रियां हैं, 5 हमारी कर्मेंद्रियां हैं, 5 हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, और उनको सबको कंट्रोल करने वाली उभय इंद्री 11वीं हमारा मन होता है। मन ऐसा है जैसे रथ का सारथी होता है, जैसे गाड़ी का ड्राइवर होता है। तो वही सब इन 10 की 10 इंद्रियों को चलाता है, इन्हीं पे कंट्रोल करता है। तो क्या कह रहे हैं कि जो इंद्रियां चित्त के हरण करने वाले विषयों की ओर ले जाती हूँ, हमको गलत काम की ओर ले जाते हैं, उनको रोकने का प्रयत्न करें। साथ में वो और एक क्वेश्चन कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जैसे अग्नि में ईंधन और घी डालने से अग्नि बढ़ती है, इसी प्रकार से जितनी ये काम वासनाएं हैं, जिनको लस्ट बोलते हैं, ग्रीड बोलते हैं हम, वो सब जो है उनका उपभोग से भी कभी काम शांत नहीं होता, बल्कि जितना हम उपभोग करते हैं उतनी हमारी अग्नि की ज्वाला और बढ़ती है। तो वासना पूर्ति से शांत नहीं होती और भड़कती है। और इसीलिए ऋषि मुनियों ने भी कहा है कि विषयों का चिंतन कम करें, वासनाओं से अपने को दूर रखें। कामना और वासना में अंतर होता है बंधुओं। कामनाएं वो हैं जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक इच्छाएं हैं, और वासना वो होती है जो हमारे केवल हमारे मन की जो दुष्प्रवृत्तियां हैं उनको पूरा करने की हमारे मन में जो भावना जगती है, एक ऑब्सेशन क्रिएट होता है, उसको हम लोग वासना बोलते हैं। तो कामनाओं की पूर्ति करना तो मनुष्य मात्र का कर्तव्य है, लेकिन वासनाओं पर अंकुश करना ये भी मनुष्य का कर्तव्य है। और स्वामी जी ने यही कहा कि जितना उनका हम उपभोग ज्यादा करेंगे वो अग्नि की भांति जैसे घी डालते हैं और भड़कती है। स्वामी जी ने एक बड़ी व्यवहार की बात की है। सामान्यतः क्या होता है, जब कोई व्यक्ति धर्म का कहीं भी व्याख्यान करता हो तो कई दफे उसके चारों ओर इस तरह के लोग होते हैं जो उनसे कोई प्रश्न पूछने का प्रयास करते हैं। सामान्यतः जो लोग प्रश्न पूछते हैं वो अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए करते हैं। और कई बार देखने के लिए ये भी आता है कि अगर 20-30 लोग किसी एक विद्वान के पास में कुछ प्रश्न पूछने के लिए खड़े हैं तो उसमें 2-4 लोग ऐसे होते हैं जो केवल मजा लेने के लिए प्रश्न करते हैं। उनको समझने की कोई भावना नहीं होती, उनको जानने की इच्छा नहीं होती। उनकी इच्छा ये होती है कि कोई भी एक ऐसी बात पकड़ लें इस गुरुजी के मुंह से बोली हुई, जिसका हम बात का बतंगड़ बना के और उसको ऐसा ताड़, तिल का ताड़ बना दें कि बाद में हम उसका दुष्प्रचार कर सकें। जैसा कि आजकल हमारी राजनीति में रोज हम देख रहे हैं, कोई भी एक नेता एक वो देता है वक्तव्य, उसका विरोध करने वाले इतने लोग खड़े होते हैं कि स्वयं वक्ता को ये कहना पड़ता है कि मेरा ये अभिप्राय नहीं था, लोगों ने गलत समझा, इसको विदाउट रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट कोट कर रहे हैं इसलिए गलत बता रहे हैं। तो स्वामी जी ने इसके लिए बहुत सुंदर हमारे को, मैंने कहा ना दशम समुल्लास में हमारे व्यवहार के बारे में बताया, तो उन्होंने ये कहा है कि जो व्यक्ति गंभीर नहीं है, कपट से पूछ रहा है, सिर्फ आनंद लेने के लिए, मजाक करने के लिए पूछ रहा है, तो उसके लिए विद्वानों के लिए एक आदेश है कि वो उसके सामने जड़ के समान हो जाएं, उसकी बात को सुन के भी अनसुना करें,
उसकी प्रश्न का उत्तर ही नहीं दें, ऐसे हो जाए मौन की जैसे वो सुन नहीं रहे हैं। वो व्यक्ति स्वयं ही पूछते पूछते अपने आप ये कि जब ये मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे तो वो हट जाएगा। साथ में ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति निष्कपट हैं, जिज्ञासु हैं, जानने की इच्छा रखते हैं, जिनके मन में ये इच्छा है कि हाँ मुझे कुछ जानना है, उनको तो उनके मन की भावना को उनके बॉडी लैंग्वेज से समझ के बिना पूछे भी उनकी शंका का समाधान करें। लेकिन जो आदमी कपट पूर्वक पूछ रहा है, उसके सामने बुद्धिमान व्यक्ति को ना बोलने की जरूरत है, ना बहस करने की जरूरत है, केवल जड़ के समान चुप होके उसको चुप से हराने की जरूरत। क्योंकि बोलते हैं कि एक चुप जो है वो 100 को हराती है। तो स्वामी जी उसी के बारे में कह रहे हैं। स्वामी जी एक और बात बता रहे हैं कि समाज के अंदर में कौन व्यक्ति सम्मान का अधिकारी है। उन्होंने कहा हमारे यहाँ पे सम्मान देने के बहुत से मानक होते हैं। बहुत से लोगों को धन के कारण सम्मान मिलता है, बहुत से लोगों को उनकी शक्ति के कारण सम्मान मिलता है, बहुत से लोगों के पास कोई राजनीतिक शक्ति है उसके कारण मिलता है। तो समाज में जितनी भी हमारी प्रवृत्तियां हैं उसके लिए स्वामी जी ने क्या वो दिया, उन्होंने कहा 5 मानक होने चाहिए मान्यता के। सबसे पहला तो होना चाहिए धन, दूसरा उसके बाद होना चाहिए बंधु कुटुंब और कुल। जितने मेरी फैमिली का जितना बड़ा पैरामीटर होगा, जितनी पैराफरी होगी, जितना उसका पैराफर्नेलिया होगा, उतना समझ लीजिए कि मैं सशक्त हूँ समाज के अंदर। एक आज तो हमारे यहाँ न्यूक्लियर फैमिली का रिवाज हो गया है, इसलिए आज तो ये बात जो है बड़ी अजीब सी लगती है। लेकिन जब पहले कभी जॉइंट फैमिली होती थी तो लोग इस बारे में चर्चा करते थे कि भाई मेरी फैमिली इतनी बड़ी है, मेरे यहाँ इतने लोग हैं, और बड़े गर्व से ये भी बताते थे कि मेरे घर में मेरे चौके पे इतने लोगों का भोजन बनता है। आज तो ये बातें सब सुपना हो गई हैं। लेकिन आज तो हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि स्वामी जी ने किसको मान्यता दी। उन्होंने कहा पहली अवस्था जो है वो धन है, दूसरी अवस्था बंधु कुटुंब कुल है, तीसरी अवस्था कुल तीसरी अवस्था है, चौथा दूसरा बंधु है कुटुंब, और कुल जो है वो तीसरी अवस्था है। उसके बाद में चौथा अवस्था है उत्तम कर्म, और पांचवी अवस्था है श्रेष्ठ विद्या। तो ये 5 मान्य के स्थान है। लेकिन उन्होंने फिर इसके बारे में बताया कि कौन सा पहले सबसे ज्यादा महत्व किसको देना चाहिए। तो उन्होंने कहा है कि धन से उत्तम होता है हमारा बंधु, हमारा मित्र। बंधु से भी अधिक हमारे लिए माननीय है अवस्था। इसका मतलब क्या है कि हम धन को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। आज समाज में होता है कि धन जिसके पास है सबसे ज्यादा मान्यता उसको दी जाती है। स्वामी जी इसको किस प्रकार से क्रम में कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो पहला क्रम है वो उत्तम बंधु है, बंधु से भी अधिक अवस्था है, अवस्था से भी अधिक श्रेष्ठ उस व्यक्ति का कर्म है, और कर्म से भी अधिक श्रेष्ठ उसकी पवित्र विद्या है। तो समझ लीजिए कि एकदम रिवर्स ऑर्डर उन्होंने कर दिया कि सबसे पहले मान्यता का मानक होना चाहिए, जो हमारा स्टैंडर्ड होना चाहिए, जिस व्यक्ति के पास पवित्र विद्या है सबसे ज्यादा माननीय वो है। उसके बाद में वो व्यक्ति माननीय है जिसके कर्म श्रेष्ठ हैं। उसके बाद तीसरा व्यक्ति वो है जिसकी आयु अधिक है, और चौथा वो है जो हमारा मित्र है, और पांचवा कौन है, जिसके पास धनवान है। तो इस रिवर्स ऑर्डर को ऋषि दयानंद के मान को हम लोग समझें तो 10वें समोल्लास के परामर्श को समझेंगे। आगे उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति अज्ञानी है, विद्या का महत्व इतना बताया उन्होंने कि जो व्यक्ति अज्ञानी है वो किसी भी आयु का हो उसको हम लोगों ने बालक समझना चाहिए। बालक का मतलब है जिसके पास में बुद्धि नहीं होती। हम बच्चों को, किशोर अवस्था को, बालक में उनको एक बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं कि अरे अभी बच्चा है, नादान है, इसको नहीं जानकारी होगी, इसने कुछ गलत बात बोली होगी, कोई बात नहीं, इसको मालूम नहीं है, इसको माफ कर दो। तो इसलिए स्वामी जी भी कह रहे हैं जो व्यक्ति अविद्या से ग्रस्त है, अज्ञानी है, जिसके पास में किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं है, वो किसी भी आयु का हो, भले ही 90 साल का हो, ये मान के चलो कि वो बालक बुद्धि का है। और इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति ज्ञानी है वो पिता के तुल्य है। देखिए परिभाषाएं किस प्रकार से स्वामी जी की हमारे सामने स्पष्ट हो रही है। इसके बाद में वो क्या कह रहे हैं, ऋषि महात्माओं का हमारा ये निश्चय है कि वृद्ध की परिभाषा क्या है। हम किसको कहें वृद्ध? आज हम कहते हैं ही इज एन ओल्ड मैन। स्वामी जी कह रहे हैं कि हु इज एन ओल्ड? वो कह रहे हैं जो हमारे बीच में विद्या और विशेष ज्ञान, जिसको हम विज्ञान कहेंगे,
आज साइंस को बोलते हैं, हम साइंस को हम टेक्नोलॉजी से जोड़ते हैं, पर देखा जाए तो विज्ञान का अर्थ है विशेष ज्ञान। तो किसी भी विशेष विषय का तो इतना ज्यादा उसका हमारे को नॉलेज हो जाए कि उसकी हम सारी बारीकियों को समझाएं, तो समझ लीजिए जब हमारी फाइन ट्यूनिंग होने लगती है नॉलेज की, तो हम साइंस की ओर बढ़ने लगते हैं। तो जब हमारा ज्ञान जो है वो विशेष हो और विज्ञान में अधिक हो, तो जितना विद्या और विज्ञान में अधिक होगा वो उतना ही वृद्ध पुरुष कहलाता है। वृद्ध क्या है? वो ज्ञान वृद्ध है। उन्होंने आगे और स्पष्ट किया, हमारे यहाँ 4 वर्ण होते हैं। ब्राह्मण वर्ण होता है, क्षत्रिय होता है, वैश्य होता है, शूद्र होता है। तो उन्होंने उसके लिए कोडिफिकेशन कर दिया, क्लासिफिकेशन कर दिया। ब्राह्मणों के अंदर वो वृद्ध है जो ज्ञान वृद्ध है, क्योंकि ब्राह्मण का काम ही यही है। क्षत्रियों में कौन वृद्ध माना जाएगा, श्रेष्ठ माना जाएगा? जिसके पास बल अधिक है। वैश्यों में कौन श्रेष्ठ माना जाएगा? जिसके पास धन धान्य अधिक है। और शूद्रों में वो माना जाएगा जिसकी आयु अधिक है। आज हमारे यहाँ क्या होता है, हम लोगों ने वैदिक मान्यता को छोड़ के सामान्यता कोई भी व्यक्ति जो आयु में बहुत अधिक है, ज्ञान उसके पास हो या ना हो ये हमारे सोच में नहीं होता, लेकिन हम उसको कहते हैं कि इस समाज के अंदर में, इस सभा के अंदर में सबसे ज्यादा वृद्ध व्यक्ति कौन है? ये व्यक्ति जिसकी आयु 95 की है। हम लोगों को ध्यान होना चाहिए कि जब महाभारत में युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया, उस समय प्रश्न उठा कि हमारी इस सभा के अंदर में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति कौन है जिसको अर्घ्य प्रदान किया जाए। तो भीष्म पितामह उस समय के सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी व्यक्ति थे और सबसे ज्यादा आयु में भी थे। तो सब लोगों ने तो यही माना कि भीष्म पितामह यही सर्वश्रेष्ठ माने जाएं। पर भीष्म पितामह ने उस समय जो रूलिंग दी, उन्होंने कहा आज की इस सभा के अंदर सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति अगर मेरी दृष्टि में कोई है तो वो योगेश्वर श्री कृष्ण है, इसलिए अर्घ के अधिकारी वो हैं। भीष्म पितामह जब इस बात को कह रहे हैं तो सारी जितनी सभा थी वो एकदम उसके सामने शांत हो गई, और स्वयं भीष्म ने अपने हाथ से श्री कृष्ण को अर्घ्य प्रदान किया, सारी सभा के अंदर सर्वश्रेष्ठ सम्मान दिया। तो ऋषिजानंद उसी को स्पष्ट कर रहे हैं। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अविद्वान है, मनुष्य का ये पहला कर्तव्य बनता है कि जैसे ही वो धीरे धीरे किशोरावस्था से आगे की ओर बढ़े तो वो विद्या के लिए निरंतर उन्मुख हो जाए। जब आपको अगला मेरा लेक्चर दूसरे और तीसरे समोल्लास का आने वाला है, वो शिक्षा का संबंधी है, उसी का यहाँ संकेत में दे रहा हूँ। उसमें एक संकेत में स्वामी जी ने लिखा है कि जो अपने संतान को नहीं पढ़ाता है वो एक प्रकार से माता पिता दंड के भागी हैं। और हमारे यहाँ तो सुभाषित है, माता शत्रु पिता वैर येन बालों ने पाठित है। जिन्होंने अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया वो एक प्रकार से उन बच्चों के शत्रु हैं। शत्रु का मतलब वो बच्चे मानवता के प्रतीक हैं, अभी अभी तो जन्म लिया है, और उनको अगर विद्या की ओर उन्मुख नहीं कर रहे हैं तो माता पिता सबसे बड़े दंड के भागी हैं। तो यहाँ पे मनुष्य स्वामी जी क्या कह रहे हैं कि जो व्यक्ति है विद्वान है, जिसके पास विद्या नहीं है, वो कहने को मनुष्य तो है, नाम मात्र का मनुष्य है, वो मनुष्य नहीं है कायदे में। मतलब इतने कठोर वाणी के अंदर में स्वामी जी ने अपनी परिभाषा दी। आगे वो क्या कह रहे हैं, उपदेश। उपदेश कैसा होना चाहिए? बहुत से सामान्यतः जो विद्वान लोग हैं वो बड़े कठोर वाक्य शब्दों का प्रयोग करते हैं, लोगों के साथ बात भी करते हैं तो उपेक्षा से करते हैं। ऐसा विद्वान बताने का प्रयास करता है कि मैं बड़ा ज्ञानी पुरुष हूँ और आप सब लोग सामान्य लोग हो, निर्बुद्धि लोग हो, तो उनके साथ में कुछ इस प्रकार का व्यवहार करता है जो बहुत सम्मानजनक नहीं होता। स्वामी जी क्या कह रहे हैं, उपदेश में वाणी मधुर और कोमल बोलनी चाहिए। वो किसी भी उपदेशक को, धर्माचारी को ये अपनी ओर से अनुमति नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये वेदों का आदेश है। विद्या ददाति विनयम, इसका अर्थ यह है कि विद्वान व्यक्ति वही है जो विनीत है, और जो विनीत नहीं है, उद्दंड है, तो मान लीजिए उसकी विद्या में कहीं कमी है। आज स्थिति बड़ी भिन्न देखते हैं। हमारे बहुत से धर्माचार्य अपने भक्तों के साथ में जो व्यवहार करते हैं वो कोमलता का, सम्मान का नहीं होता। तो वेदों का आदेश बिल्कुल उसके विपरीत है। तो ऐसे धर्माचार्यों के बारे में हम अपने मन में क्या कल्पना रखें, ये मेरे श्रोता स्वयं निश्चय करेंगे। स्वामी जी क्या कह रहे हैं कि सत्योपदेश से धर्म की वृद्धि होती है और अधर्म का नाश होता है, और जो ऐसा ये करते हैं अपने उपदेश से वो वास्तव में धन्य है पुरुष।
एक हमारे यहाँ ये विषय होता है कि कितनी साफ सफाई रखें। हमारे यहाँ बहुत से लोग साफ सफाई के बारे में इतना आग्रह रखते हैं कि उनका आधी एनर्जी वो साफ सफाई में लगती है। किसी का हाथ का छुआ नहीं, कोई उनको छू नहीं ले। गंगा से स्नान करके आ रहे हैं, रास्ते में किसी व्यक्ति ने अगर उनको जरा सा भी छू लिया, स्पर्श कर लिया, तो वापस स्नान करने के लिए जाना। इस तरह की हमारे यहाँ पे प्रवृत्तियां बहुत रही हैं। अब कुछ कम होने लगी हैं, लेकिन आज भी कुछ लोग उसके पक्षधर होंगे। घर के अंदर भी बहुत कुछ होता है, लेकिन हम अशौच किस समय होते हैं? जब हम अपने दैनिक नित्य कर्म के लिए जाते हैं। उस समय वास्तव में हम शुद्ध नहीं होते। लेकिन जैसे ही हम अपने नित्य कर्म को करके और अपने हाथों को साफ कर लेते हैं और उसके बाद स्नान कर लेते हैं, हम शुद्ध हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। तो स्वामी जी ने तो इसको बड़ा सुंदर, बहुत ही सरलीकरण कर दिया। उन्होंने कहा शौच की सीमा उतनी ही होनी चाहिए जितने से मल दुर्गंध दूर हो जाए, मेरे पसीने की स्मेल आनी बंद हो जाए, मेरे शरीर के अन्य अन्य जितने मल मूत्र का विसर्जन है उससे मेरी न रह जाए। तो बस इससे ज्यादा, पर बहुत ज्यादा, उसको उन्होंने पाखंड की श्रेणी में दिया। इसकी आवश्यकता ही नहीं है। आगे वो कह रहे हैं देव पूजा किसको कहते हैं? उन्होंने कहा माता पिता आचार्य और अतिथि, क्योंकि ये जीवित देव होते हैं। हमारे यहाँ जड़ देवता होते हैं पंचभूत तत्व, जिनको हम 5 फंडामेंटल एलिमेंट्स कहते हैं, वो भी देवता हैं, लेकिन वो जड़ देवता हैं। उनका अपना ज्ञान नहीं है, उनका केवल हम पदार्थ के रूप में उपयोग करते हैं। उनकी पूजा करते हैं उनको मूल स्वरूप में सुरक्षित रख के, जिसको हम पर्यावरण की, एनवायरमेंटल बोलते हैं, कि हम एनवायरनमेंट की किस प्रकार से रक्षा करें। तो उसकी रक्षा क्या करेंगे? जिस मूल स्वरूप में वायु जैसी हमको सुगंध मिली है, वैसी ही उसको साफ छोड़ें। इसलिए हम लोग यज्ञ और हवन करते हैं। नदियों को गंदा ना करें, वो अलग विषय है। तो जड़ देवताओं की पूजा कैसे करनी है? लेकिन जो चेतन देवता हैं उसके लिए उन्होंने कहा माता पिता आचार्य और अतिथि, ये चारों देवताओं की श्रेणी में आते हैं। इनकी जो सेवा करें हम, तो वो पूजा कहलाती है। अब मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग जो विषय है वो आप लोगों के लिए बताने वाला हूँ, और विशेष जो अमेरिका से जुड़े हुए हैं। इसी दशम समोल्लास में स्वामी जी ने कुछ भूगोल की चर्चा की है, और भूगोल की चर्चा में वो ये कहते हैं कि हमारे यहाँ पे जो व्यास जी थे और उनके पुत्र सुखदेव जी थे, वो अपने शिष्य सहित पाताल लोक में रहते थे। और स्वामी जी उसके लिए स्पष्ट निर्देश करते हैं, इस भूगोल में पाताल लोक और कुछ नहीं है, वो वही है जो जिसको आज हम अमेरिका बोलते। और इसका स्पष्ट, हम जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं प्रबुद्ध लोग हैं, आपका और हमारा सीधा 12 घंटे का अंतर है। दिन 24 घंटे का होता है। इसका मतलब हेमिस्फीयर, ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर है। तो दुनिया का आधा हिस्सा इधर, हेमी का मतलब हाफ। तो हेमिस्फीयर ईस्ट में है तो हेमिस्फीयर उधर है, ऐसे ही हेमिस्फीयर नॉर्थ में है तो हेमिस्फीयर साउथ में है। तो उन्होंने क्या कहा है? पाताल का मतलब है कि जो अगर हम यहाँ से आज भारत में दिल्ली में बैठ के अगर ड्रिल करना शुरू करें, एक हाइपोथेटिकल में बात कह रहा हूँ, कि इतना लंबा हमारे पास ड्रिल की रॉड हो कि हम इस पृथ्वी के आर पार पूरे भूगोल के ड्रिल कर दें, तो स्वाभाविक रूप से मुझको लगता है कि वो अमेरिका में ही कहीं जाके निकलेगी। क्यों निकलेगी? कि वो सीधा 12 घंटे का अंतर है। हमारे यहाँ सूर्य जब उदय होता है तो आपके यहाँ अस्त होता है, और यही 12 घंटे का अंतर है। आप लोग वहां पे 11 बजे ज्वाइन किए हैं, हम लोग यहाँ पे 8:30-9 बजे ज्वाइन किया है। तो लगभग कुल मिला के उस टाइम जोन में है। तो स्वामी जी तो इसके बारे में स्पष्ट ही कर रहे हैं। आगे वो और स्पष्ट कर रहे हैं कि ये यूरोप क्या है। वो कह रहे हैं हरि शब्द बंदर के लिए प्रयोग होता है, और इसीलिए हम हनुमान जी के लिए भी लोग जो है, चूंकि वो जाति हरिवंश कहलाती थी, हरिगण कहलाते थे, ये हमारे महाभारत में चर्चा है। तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं? हरि बंदर को कहते हैं। और बंदर की जो आकृति होती है वो रक्त मुख की होती है, थोड़ी लाली होती है उसके चेहरे पे, बहुत ज्यादा। और उसके जो नेत्र होते हैं वो भूरे होते हैं। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि जितना हमारा यूरोप है, इस यूरोप के लोगों की जो आकृति है वो, उनके चेहरे लाल होते हैं, उनकी आंखें भूरी होती हैं, इसलिए उनको हम हरिवर्ष कहते हैं। तो स्वामी जी कितना स्पष्ट बता रहे हैं कि पाताल लोक का मतलब अमेरिका, हरिवर्ष का अर्थ है यूरोप। फिर आगे वो क्या कह रहे हैं? हमारे यहाँ महाभारत में ये आता है कि पांडु की 2 पत्नियां थी। एक माद्री थी,
अब ये जो माद्री थी, इसके दो पुत्र थे, सहदेव और नकुल। उसके लिए बताया जाता है कि ये कहाँ से आई थी माद्री। माद्री का वो बता रहे हैं, ये ईरान का जो उस समय राजा था उसकी कन्या थी। इसके अलावा ये बता रहे हैं कि बताया जाता था कि अर्जुन जो है वो पाताल लोक गए थे और उन्होंने वहां पे एक उलूपी नाम की कन्या से विवाह किया। तो स्वामी जी उसका स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि अरे उस समय आर्य जाति सारे भूगोल के अंदर में प्रवास करती थी, तो इसलिए अर्जुन जो गया इसका विवाह पाताल लोक में, अमेरिका में, वहां के जो भी राजा रहे होंगे किसी भी क्षेत्र के, उनकी पुत्री उलूपी के साथ हुआ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप लोगों के भी समझने का है, हम लोगों के लिए भी बड़ा सुनने समझ में आता है। और स्वामी जी इन सब चीजों को किस प्रकार से ढूंढ के लाए और हमारे को सामने स्पष्ट कर रहे हैं, उसको आगे उन्होंने और स्पष्ट किया कि जब महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया तो उस समय ये बताया गया था कि भूगोल का मतलब ये जो गोल पूरी हमारी पृथ्वी है, ग्लोब, इसके ग्लोब के जितने भी दुनिया के राजा हैं उनको निमंत्रण देने के लिए चार दिशाओं में उन्होंने अपने चारों भाइयों को भेजा था। भीम को भेजा, अर्जुन को भेजा, नकुल को और सहदेव को। तो उन्होंने ये बताया कि जो सहदेव और नकुल गए थे, ये गए थे पाताल लोक, तो अमेरिका गए क्योंकि अर्जुन की ससुराल थी वो। तो चारों दिशाओं में जाने का मतलब कहने का कि लोग तो आज अंग्रेजों के उसमें ये कहते हैं कि आर्य भारत के अंदर बाहर से आए थे। स्वामी जी इसको बिल्कुल एकदम से अपसाइड डाउन की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आर्यों का तो प्रादुर्भाव ही इस भरत भूमि में, आर्यावर्त में हुआ था, भरत भूखंड में हुआ था। और सबसे भी पहले जो ओरिजिनल जो आर्यों का वो हुआ है बिगनिंग, वो उन्होंने बताया त्रिविष्टप से। त्रिविष्टप का मतलब जिसको हम तिब्बत बोलते हैं। और उसके बाद में ये जो एरिया है दोआबा का, यहाँ पे उनका विस्तार हुआ और उसके बाद सारी दुनिया में वो गए। उन्होंने कहा आर्य लोग व्यापार, राजकार्य और भ्रमण के लिए सब भूगोल में घूमते थे। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। आगे स्वामी जी और क्या बता रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो लोग मांस भक्षण और मद्यपान करते हैं, कहने को तो ये है कि वो निंदनीय है, लेकिन स्वामी जी बड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हैं। उन्होंने कहा कि वो मांस भक्षण और मद्यपान करते हैं तो वो अपना अपना आचार खराब करते हैं ये। लेकिन अगर वो व्यक्ति के साथ में वो अपने जीवन में क्या कर रहा है वो उसका विषय है, लेकिन व्यवहार में और उसके अंदर में कोई गुण भी है, तो उसके गुण को ग्रहण करने में हमको क्या दोष है। हाँ, उसके जो दोष हैं, मद्यपान करता है, मांसाहार करता है, वो हम उससे भले ही ना सीखें, बस ये तो हमारे लिए आवश्यक है। लेकिन उससे व्यवहार करने में, उससे व्यापार करने में काहे का परहेज है। आज के धर्माचार्य हमारे जिस प्रकार की बात करते हैं, जरा उससे ऋषि दयानंद के परामर्श को थोड़ा सा को रिलेट करके और इक्वेट करके देखिए। ही इज बीइंग सो प्रैक्टिकल कि जो आदमी जैसा व्यवहार आचरण कर रहा है उसकी कर्मफल व्यवस्था के अनुसार उसका दंड उसको भुगतना है। लेकिन इस मनुष्य जाति को आपस में एक दूसरे के साथ में गुण ग्राहकता का स्वभाव होना चाहिए। किसी के अंदर भी गुण है, उस गुण को ग्रहण करना है, क्या उसके अंदर में बात है। व्यापार करना है तो व्यापार करिए, व्यवहार करना है तो व्यवहार की। हाँ, शादी विवाह करना है क्योंकि उसमें रक्त का संबंध होता है, उसके बारे में सावधानी बरतिए। तो स्वामी जी इज गोइंग टू बी वेरी प्रैक्टिकल। उन्होंने तो ये कहा है कि दोष जो है किसी दोषी के साथ व्यवहार करने से नहीं लगता। दोष हमको भी लगेगा तो हम अपना पाप कर्म करेंगे, उसका लगेगा। तो इसके लिए उन्होंने स्पष्ट ये बताया कि जो व्यक्ति कर्म करता है फल केवल उसी को मिलता है। कई दफे हम भावावेश में ये कहते हैं, मान लीजिए किसी की कोई संतान बीमार हो गई तो माता पिता भावावेश में कहते हैं कि कोई हमारे पाप कर्म होंगे जो मेरा बच्चा भुगत रहा है। स्वामी जी बड़ा स्पष्टीकरण दे रहे हैं, कोई भी व्यक्ति अपने अतिरिक्त किसी के कर्म के फल का भोग नहीं करता है। हमको पुरस्कार भी मिलता है तो अपने ही कर्म के फल का मिलता है, दंड भी मिलता है तो अपने ही कर्म का मिलता है जो हमारा कुकर्म होता है। इसीलिए उन्होंने ये बड़ा स्पष्ट मोटे मोटे हेडलाइन में बड़े बोल्ड में लिखा है कि दोष तो पाप के काम करने से लगते हैं, दोषी व्यक्ति से व्यापार और व्यवहार करने में नहीं लगते। बहुत से लोग विदेश जाने के लिए बड़ा विरोध करते थे, भारत की ये हमारा इतिहास रहा है। वो कहते थे ये समुद्र पार नहीं जाना।
और जैन समाज में तो इसका बहुत ही निषेध हुआ है। केवल जैन समाज में एक पंथ हुआ है सुशील मुनि जी का। वो पहली बार जैन समाज में जैन आचार्य होते हुए भी वो विदेश गए, उनका जैन समाज ने बहिष्कार कर दिया है। आज भी जैन समाज के ही अंग माने जाते हैं, लेकिन बाकी जैन समाज उनके साथ बहुत ज्यादा व्यवहार नहीं रखता। मेरे उनके साथ में यहाँ आज भी संबंध है, दिल्ली में उनका आश्रम भी है। लेकिन स्वामी जी क्या कह रहे हैं, पाक ये समझते हैं कि जो हम इनको विद्या पढ़ाएंगे, देश देशांतर में जाने की आज्ञा देंगे, तो ये बुद्धिमान होकर हमारे पाखंड जाल में न फंसकर हमारी प्रतिष्ठा और जीविका का नाश करेंगे। स्वार्थ की सिद्धि है कि जितना मैं अपने भक्त को विद्वान कर दूंगा, ज्ञान दे दूंगा, तो वो क्या करेगा, मैं जितना भी छल प्रपंच उसके साथ कर पाता हूँ वो करेगा नहीं, क्योंकि इग्नोरेंस इज ब्लिस। और जो आदमी जितना जानता है वो दूसरा उतने ही उसके छल कपट से बचता है। लोग ये व्यापार में कहते हैं ना, मैं भी व्यापार का एक व्यापारी परिवार से संबंध रखता हूँ। हमारे यहाँ व्यापार में प्रॉफिट किसको कहा जाता है? प्रॉफिट जो है वो इग्नोरेंस ऑफ द कंज्यूमर इज प्रॉफिट। जितना कंज्यूमर इग्नोरेंट होगा उतना ही व्यापारी का प्रॉफिट बढ़ेगा, क्योंकि वो उसको किसी भी तरीके से एक्सप्लॉइट कर सकता है। और अगर जितनी आपको जानकारी होगी, जिस चीज को आपको खरीदना है उसके बारे में टेक्निकल आपको समझ होगी, जितने आपके क्वेश्चन होंगे, क्वेरीज होंगी, वो व्यापारी उतना ही समझ जाएगा कि ये कंज्यूमर सामान्य कंज्यूमर नहीं है, ये कंज्यूमर के साथ में इसका यूजर भी है और यूजर का मैनुअल भी जानता है। तो बंधुओं, यही धर्म के विषय में है। जितने ज्यादा अज्ञानी होते हैं, और इस अज्ञान का प्रमाण मैं आपको एक दे सकता हूँ। सामान्यतः हम जब किसी भी पंडित जी को अपने घर में किसी यज्ञ और अनुष्ठान के लिए बुलाते हैं, आप सबके अनुभव में आया होगा, तो वो केवल पंडित जी अकेले ही सारे मंत्रों का पाठ करते हैं। किसी भी भक्त को, किसी भी यजमान को मंत्र पाठ करने के लिए जरा भी प्रोत्साहित नहीं करते, ना प्रेरणा देते, ना अपनी ओर से परामर्श देते। लेकिन आप किसी आर्य समाज के विद्वान को जरा बुलाइए, वो सबसे पहले पुस्तकें आपके हाथ में बांटेगा, और जिन मंत्रों को वो पढ़ रहा है, जितनी तेजी से वो पढ़ रहा है, क्योंकि उसको अभ्यास है, शायद आप ना पढ़ पाए, लेकिन उसका ये आग्रह रहता है कि जिस व्यक्ति ने बुला के मेरे को यजमान बन के बुलाया है, पुरोहित करके मुझे बुलाया है, वो भी इन मंत्रों का पाठ करे, तभी ये यज्ञ सार्थक होगा। इतने से ये पता लग जाता है कि कौन विद्या को अपने पास रखना चाहता है, कौन विद्या को बांटना चाहता है। तो ऋषि जानन ने तो बड़ा ही स्पष्ट किया कि विद्या को कौन लोग नहीं बांटना चाहते? वही लोग नहीं बांटना चाहते जिनका स्वार्थ उसके साथ में हित होता है। जिनका स्वार्थ उसके साथ जुड़ गया, वो चाहेगा कि ये आदमी अंधेरे में रहे। तो पाखंडी लोग ये समझते हैं जितना इनको पढ़ाएंगे, इसी तरह से जितना इनको देश देशांतर में जाने की आज्ञा दे देंगे, इनका ब्रॉड विजन हो जाएगा। इतना ब्रॉड विजन हो जाएगा, ये दुनिया को देख के आएंगे, बहुत सी बातों को जान के आएंगे, इनको ये पता लगेगा कि हमारे यहाँ ये बात गलत होती है। क्योंकि और जगह की सोसाइटी अगर प्रोग्रेसिव है, तो अपने यहाँ की जो रिट्रोग्रेसिव सोसाइटी है, उसको किसी भी तरीके से आदमी अपने मन में फिर शंका करता है कि भाई ऐसा क्यों है पंडित जी। तो ये क्यों और क्या ना हो, तो इसलिए वो क्या करते हैं, बाहर जाने की आज्ञा नहीं, समुद्र नहीं जाए पार करेंगे। साथ में अब आगे क्या कह रहे हैं कि वो भोजन छादन में भी बखेड़ा डालते हैं। खाना किस प्रकार से बनाना, खाना किस प्रकार से खाना, रसोई कैसी हो, चौका कैसा हो, उसके अंदर भी दुनिया भर की हमारे यहाँ पे प्रोहिबिशंस उन्होंने क्रिएट कर दी। उसके लिए स्वामी जी ने क्या कहा? स्वामी जी ने कहा है कि जब याद कीजिए, जब हमारे यहाँ पर महाभारत और उस समय रामायण के काल में युद्ध हुए होंगे, या उसके बाद में भी जब भी कभी युद्ध हुए राजाओं के, तो क्षत्रिय लोग युद्ध के समय में क्या चौका लगा के भोजन करते थे? क्या वहां पे इतना अवकाश होता है? सेना जब लड़ने के लिए जा रही है, तो वहां पे जो सैनिक अपने मोर्चे पे जो उसके पास में भोजन बांध के दिया हुआ है, वो वहां पे कितना चौका लगा के और उसकी शुद्धि का ध्यान करके वहां पे भोजन कर सकता है? व्यवहारिक ही नहीं है। उन्होंने कहा पहले तो स्थिति ये थी कि क्षत्रिय लोग युद्ध में एक हाथ से रोटी खाते थे, पानी पीते जाते थे, और दूसरे हाथ से तलवार चलाते हुए, भाला चलाते हुए शत्रुओं के साथ युद्ध भी करते थे। ये तो प्रैक्टिकल बात है। आज भी कई दफे देखा है आपने, गाड़ियों में देखा है, जब लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं और हमारे पास रुकने का अवकाश नहीं होता, तो हम गाड़ी भी चलाते रहते हैं, और किसी से भी कोई भी एक रेडीमेड अपने ही बराबर में पत्नी बैठी है या बच्चा बैठा है,
उससे कहते हैं बेटा ये तू मुझे जरा कागज में टिश्यू में लपेट के दे दे, मैं एक हाथ से खाता रहूंगा, एक हाथ से ड्राइव करता रहूंगा। जब आदमी को प्रैक्टिकल होना होता है, उसके सामने समय का अभाव होता है, तो फिर ये भोजन की शुद्धता और चौके के अंदर ही बैठ के खाना, इससे बाहर खाना नहीं खाना, इन सब के बारे में स्वामी जी ने ये कहा कि ये व्यवहार होना चाहिए परिस्थिति के हिसाब से। मैं अपने घर में हूं तो मैं इन सब चीजों का आचरण का पालन करूं कि मैं चौके के अंदर, रसोई के अंदर बैठ के खाऊं, उसको शुद्ध लेप के खाऊं। लेकिन अगर मैं बाहर हूं और इस प्रकार के उसमें हूं जहाँ पे एक आपातकाल की स्थिति हो, इमरजेंट सिचुएशन है, उसके अंदर में मैं व्यवहार किस प्रकार का करूं? तो उस व्यवहार के लिए उन्होंने लिखा है कि अपनी विजय करना तभी संभव है कि जब हम इस भोजन के शुद्धता के बखेड़े में कम से कम पड़ें और अपने लक्ष्य की ओर ध्यान दें। मैं बंधुओं आप लोगों से बड़ी विनम्रता से अनुरोध करता हूं कि इस विषय को बहुत गंभीरता से समझने का प्रयास कीजिए। नहीं तो आधी तो हमारी एनर्जी सिर्फ हमारे भोजन के साथ में जो लगाए हुए बहुत से इफ एंड बट हैं, उसी के अंदर में खर्च होती है। स्वामी जी उसको बिल्कुल एकदम व्यवहारिक स्वरूप दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं जैसी परिस्थिति है, जैसा आपका वर्ण है, जिस प्रकार का आपको कार्य करना है, कार्य करने के अंदर में अगर भोजन का अवकाश नहीं है तो भोजन जो है वो उस समय, जिसको हम लोग कई बार बोलते हैं ना कहीं मीटिंग्स में, सेमिनार्स में, वर्किंग लंच। वर्किंग लंच क्या होता है? बहुत कम समय है, केवल 15 मिनट देने हैं एक सेशन से दूसरे सेशन में। लोगों को कहते हैं बाहर थोड़ा सा लंच की व्यवस्था है, वर्किंग लंच है। उसके अंदर मेनू भी बड़ा छोटा सा ही होगा और कोई प्रोटोकॉल नहीं होगा। बस जाइए, आप अपनी प्लेट उठाइए, सेल्फ सर्विस करिए, भोजन करके जल्दी से जल्दी आइए। जहाँ टाइम की कीमत हो, जहाँ परिस्थितियों की कीमत हो, वहां पे हमको क्या प्राथमिकता देनी है, किस चीज को प्रमुखता देनी है, किस चीज को गौण करना है, क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्या लेसर इम्पोर्टेंट है, इसका ग्रेडिफिकेशन अगर देना है तो वो स्वामी जी ने बताया। तो स्वामी जी ने कहा जहां भोजन करें उस स्थान को धोने, लेपन करने, लेपन का मतलब मिट्टी का लेप हो या गोबर का लेप हो, झाड़ू लगा के उसको साफ करें, कूड़ा करकट दूर करें, ये प्रयत्न अवश्य करना चाहिए। क्योंकि इसके विपरीत उन्होंने लिखा है कि जितने हमारे इस्लाम के और ईसाई के लोग हैं वो संभवतः इस विषय में बहुत ज्यादा आग्रह नहीं करते, लेकिन हिंदू समाज को इसके बारे में आग्रही होना चाहिए। लेकिन कितना होना चाहिए कि उसको बिल्कुल साफ सुथरा करना चाहिए। उसके बाद में क्या कह रहे हैं कि गाय के गोबर से चौका लगाते हो, किसी ने शंका करी स्वामी जी से, आप बताइए कि गाय जो है, ये गोबर जो है ये तो अशुद्ध है, इससे चौका कैसे लगा दोगे? उन्होंने कहा गोबर से क्यों नहीं लगा सकते, गोबर तो अशुद्ध है ही नहीं। गौ एकमात्र एक ऐसा दुनिया के अंदर ईश्वर ने बनाया हुआ पवित्र वो है प्राणी कि जिसका गोबर, जिसका मूत्र, ये भी पवित्र माना जाता है। और इसीलिए सबसे ज्यादा इसको स्टेरिलाइजेशन के लिए माना जाता है कि ये हमारा एंटी बैक्टीरिया होता है। सारा जितना गौमूत्र है उसको एक प्रकार से हम लोग वहां पर खेतों के अंदर में डालते हैं कि ये जर्मिसाइड नहीं है, ये जर्मी कंट्रोलर है। बाकी सब में पेस्टिसाइड होता है और हमारा क्या होता है, ये पेस्ट कंट्रोलर होता है। ये मारता नहीं है कीड़ों को, लेकिन इसके गौमूत्र की दुर्गंध से वही कीड़े जहाँ पर पौधे हैं उससे हटके खेत की मेड़ में जाके, खेत की जो बीच की क्यारियां हैं उनके अंदर जाके बैठ जाते हैं। कितनी बड़ी बात है। पेस्टिसाइड का मतलब है उनको मारना, साइड का मतलब है मारना, होमिसाइड, सुसाइड। तो पेस्टिसाइड का मतलब हिंसा। और ये जो हम गौमूत्र से फर्टिलाइजर बनाते हैं ये क्या करता है, ये पेस्ट कंट्रोल। अपने आप में अहिंसा हो गई, हिंसा भी नहीं हुई, खेती भी हो गई। तो स्वामी जी ने क्या कहा, गाय एक ऐसा मात्र पशु है जिसका गोबर भी पवित्र है और उसी से चौका लीपना तो बहुत सुंदर बात है। उन्होंने कहा मिट्टी और गोबर को जो मिला के हम चौका लीपते हैं तो देखने में कितना सुंदर लगता है, कितना साफ लगता है और एकदम स्टेरिलाइज्ड होता है। तो इसकी वो पुष्टि कर रहे हैं। आगे कोई प्रश्न कर रहा है कि चौके में बैठ के खाना खाना अच्छा है या बाहर खाना अच्छा है? तो उन्होंने कहा अच्छा जहां दिखे वहां भोजन करना चाहिए। आपके पास अवकाश है, समय है, व्यवहारिक है, तो आप चौके के अंदर ही करिए क्योंकि चौका बना इसीलिए है। लेकिन अगर ऐसा समय नहीं है, आपके घर में इस तरह की सुविधा नहीं है, किसी के घर में दरिद्र की झोपड़ी में ये सब व्यवस्था नहीं है, तो जहां भी अच्छा लगे, साफ सुथरी जगह हो, वहां बैठ के खा लो।
इसके बारे में कोई बिना कारण के जरूरत से ज्यादा किसी भी चीज का कोई हाइप क्रिएट नहीं किया। साथ में क्या कह रहे हैं, अगर आवश्यक हो तो युद्ध आदि कर्म में तो घोड़े पे भी बैठ के खा सकते हो, किसी वाहन में जा रहे हो तो वाहन में भी बैठ के खा सकते हो, और अगर बहुत समस्या है, बैठ के भी नहीं खा सकते तो खड़े खड़े भी खा सकते हो। इससे अनुमान लगा लीजिए कि ऋषि दयानंद एक ऐसे ऋषि हुए हैं जिन्होंने वेदों में से इतनी प्रैक्टिकल अप्रोच निकाली है कि लोगों को बिना कारण के बंधनों से मुक्त करने का सब प्रकार का उन्होंने क्रांति की है। फिर किसी ने प्रश्न किया कि क्या अपने हाथ का खाना खाना चाहिए, दूसरे के हाथ का बना हुआ खाना खाना अशुद्ध है क्या? क्योंकि बहुत लोगों में होता है, हमारे यहाँ ब्राह्मण समाज में तो इस तरह की बहुत मान्यता रही है कि अपने हाथ का खाना बनाते हैं। बहुत से हमारे यहाँ सन्यासी भी हैं जो अपने हाथ से ही खाना बनाते हैं, अन्य किसी का लेते नहीं है। हमारे ही घरों में बहुत सी वृद्धा महिलाएं हैं जो आज भी बहू के हाथ का खाना नहीं खाती हैं। स्वयं वो सास कितनी भी आयु की है, कितना भी परिश्रम करके, क्योंकि वो मान उसको शुरू से ऐसी परंपरा का निर्वाह किया, वो अपने हाथ से खाना बनाना चाहती है। स्वामी जी क्या कहते हैं, आर्यों में शुद्ध रीति से भोजन बना हुआ हो तो सब आर्यों को साथ खाने में कोई हानि नहीं है। क्योंकि उन्होंने कहा कि ब्राह्मण आदि वर्णस्थ स्त्री पुरुष अगर रसोई बनाने, चौका देने, बर्तन मांजने आदि बखेड़े में पड़े रहें तो विद्या आदि शुभ गुणों की वृद्धि ना हो। आप ये देखिए, यहाँ पे इतनी डायनेमिक बात कही है, संभवतः आप लोगों को आश्चर्य हो। आज तक हमारे हिंदू समाज में एक परंपरा है कि घर में भोजन बनवाना है तो किससे बनवाना है, ब्राह्मण से बनवाना। बड़े हम लोग सम्मान से और सांत्वना से कहते हैं कि मैंने अपने घर में ब्राह्मण को भोजन के लिए रखा हुआ है, मेरे घर में खाना बनाने वाली ब्राह्मणी आती है। ऋषि दयानंद तो स्पष्ट उसका निषेध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ब्राह्मण वर्ण वही है जो केवल विद्यादि का, ज्ञान आदि का कार्य करता हो। ये ब्राह्मण का काम है कि वो भोजन बनाए। अगर ब्राह्मण भोजन बना रहा है तो एक प्रकार से क्या हो रहा है, ये तो जो हमारे मैन आवर्स हैं उसका लॉस है ये। जिस आदमी को ज्ञान करना था, ज्ञान बांटना था, ज्ञान पढ़ना था, वो भोजन बनाने में लगा हुआ है, तो इसको क्या समझेंगे? ये तो एक प्रकार से डिमीनर है। हम जिस काम को करने के कैपेबल थे उसको नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो काम कर रहे हैं जो हमारे करने का नहीं है। तो स्वामी जी का स्पष्टीकरण दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भोजन जो है वो कार्य, हमारे चारों वर्णों में भोजन बनाने का कार्य शूद्र वर्ण का है। शूद्र कोई अनार्य नहीं होता है, आर्यों का ही एक चौथा वर्ण होता है। हमारे यहाँ शूद्र की बड़ी विचित्र कल्पना की है। हम केवल उसको शूद्र कहते हैं जो कपड़ों से मैला कुचैला गंदे काम करता है, उसके बाद में साफ सफाई नहीं रखता है, गंदा काम करके आए, नाली साफ करके आए, उसके बाद में हाथ भी नहीं धोता है, धोता भी है तो बस खाली खाना पूरी करता है। तो वो शूद्र वाला वर्ण नहीं है, वो तो उसका एक प्रकार से अनार्यों वाला कृत्य है। आर्य होते हुए भी अगर साफ सफाई नहीं रखता, आप अपने ही घर के अंदर में जब सुबह को हम लोग वॉशरूम जाते हैं, उसके बाद में अगर हमारा हाथ हमने साबुन से नहीं धोया तो हम किसी चीज को लगाते नहीं है, दरवाजे को भी नहीं लगाते हैं, हैंडल को भी नहीं लगाते हैं। स्वयं अपने को अछूत मानते हैं हम, और ये मानना चाहिए। तो हम किस चीज के लिए अछूत हैं? जब तक अशुद्धि मेरे हाथ में है, और जब मेरा हाथ शुद्ध हो गया मैं रसोई में जाने काबिल हो जाता हूँ। तो हमारा शुद्धि का विषय जो है वो अशुद्धि, और वो उससे होता है छूत और अछूत, ये कुछ नहीं होता। तो स्वामी जी तो बड़ा स्पष्ट कह रहे कि भोजन का काम जो है बनाने का शूद्रों का है। सारे वर्णों में, चारों वर्णों में, तीन वर्णों को भोजन शूद्र के हाथ से बनवाना चाहिए। और शूद्र का मतलब ये नहीं है कि वो गंदा मैला कुचैला है। भोजन बनाने जैसा पवित्र काम कर रहा है तो वो अपने भी घर से आर्यों की नीति से ही उसी प्रकार से अपने शुद्ध वस्त्र पहन के, स्नान करके, साफ सुथरा होके वो बाकी तीन वर्णों के यहाँ आके भोजन बनाने की सेवा करे। शूद्र का काम ही सेवा करना तीन वर्णों की है, क्योंकि वो विद्या के अंदर उसकी रुचि नहीं है, क्षत्रिय के नाते बलशाली नहीं है, वैश्य के नाते व्यापार करने की क्षमता नहीं रखता है। तो क्या करता है, वो इन तीनों का सहयोग करता है। तो इसलिए उन्होंने कहा शूद्र के हाथ की बनाई खाएं, क्योंकि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, वर्णस्थ, स्त्री पुरुष विद्या पढ़ाने, राज्य पालने, पशुपालन, खेती, व्यापार करने में तत्पर रहें, और शूद्र उन सबकी सेवा करने में तत्पर। इससे ज्यादा स्पष्टीकरण और क्या हो सकता है? जब घर में किसी के बताया जाता है कि मेरे घर में बामनी रोटी बनाती है,
मुझ जैसे व्यक्ति को जिसने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा है तो ये लगता है कि ये व्यक्ति कितने भ्रम में है, और ये किस व्यक्ति को ब्राह्मण मान रहा है। जो शूद्र का कार्य कर रहा है वो ब्राह्मण वर्ण का व्यक्ति ही नहीं है, वो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया होगा, उसके माता पिता ब्राह्मण रहे होंगे, इसलिए उसका ब्राह्मण कुल तो है, लेकिन वर्ण उसका कर्म ब्राह्मण का नहीं है। और यही वेद कहते हैं कि मनुष्य जो है वो अपने जन्म कुल से तो केवल ये जान सकते हैं कि उसके अंदर में हेरिडिटरी, उसके अंदर में क्या वो होंगे गुण जिसको वो आनुवंशिक लेके आया होगा, लेकिन बाद में उसने कर्म किस प्रकार का किया, विद्या का ज्ञान का अपना उसने कितना विकास किया, कौन से वर्ण के अनुरूप हो गया, ये उसके व्यक्तिगत पुरुषार्थ पर निर्भर करता है। हमने सारा खेल ही बिगाड़ दिया है आज के समाज में। जिस व्यक्ति ने जिस कुल में जन्म लिया वो भले ही राष्ट्रपति बन जाए हमारे भारत का, लेकिन फिर भी वो दलित कहलाता है। जो सब प्रकार से शक्ति संपन्न है वो तो क्षत्रिय वर्ण का हो गया। हमारे राष्ट्रपति बताया जाता है कि ये दलित हैं। ये वर्ण व्यवस्था की अवहेलना है, अपमान है, वेदों के आदेश का अपमान है, क्योंकि वेदों ने ये बता दिया कि जो मैं कर्म करता हूं मेरा वर्ण वो होता है। तो हमारे यहाँ जो ये सारा का सारा एबेरेशन है, ये हमारे यहाँ जो जितना घालमेल है, ये सारा का सारा केवल इसलिए है कि हमने वेदों की वर्ण व्यवस्था को जाना नहीं। तो स्वामी जी ने कितना स्पष्ट किया, उन्होंने कहा कि ये सब लोगों को जितने भी ये द्विज वर्ण है, द्विज वर्ण का मतलब जिन्होंने गुरुकुल में जाके शिक्षा प्राप्त करके गुरु के गर्भ से दोबारा जन्म प्राप्त किया है, उसको द्विज कहा जाता है। द्विज का मतलब है दोबारा जन्म होना, रीबर्थ। पहला जन्म हुआ माँ के गर्भ से और दूसरा जन्म हुआ गुरुकुल से, गुरु के गर्भ से। तो जब उसका समावर्तन होता है जिसको हम कन्वोकेशन बोलते हैं, वो एक तरीके से हमारे द्विज होने की संज्ञा होती है। तो जब मेरा द्विज का काम होगा तो उन्होंने कहा जितने ये द्विज वर्ण हैं जिन्होंने अलग अलग योग्यताएं ग्रहण की हैं वो अपना कार्य करें, और जो उनके कार्य सेवा के हैं, भोजन आदि बनाना है, वो कार्य करे जो शूद्र वर्ण का है। साथ में उन्होंने इसके लिए और एक बात कही है, उन्होंने पशुओं के बारे में बड़ी सुंदर एक बात कही है। उन्होंने कहा जितने ये उपकारक प्राणी हैं, बहुत से प्राणी होते हैं जो कि समाज में मनुष्यों के लिए मित्र के तरह से उनके साथ रहते हैं। कुत्ता है, बिल्ली है, हाथी है, घोड़ा है, इसके अलावा गाय है, भैंस है, ये इस प्रकार के हैं। ये सब क्या हैं? ये उपकारी प्राणी हैं। स्वामी जी कह रहे हैं कि वेदों में इसका निषेध है। उपकारी प्राणियों को, वाइल्ड जो हैं वो पे कहीं पे मनुष्य जाति की हानि करते हो तो उसको मार देना तो ठीक है, लेकिन अकारण उसको भी नहीं मारना, क्योंकि उसको भी जीने का अधिकार है। लेकिन अगर वो मर्यादा को भंग करके मनुष्य जाति पर आक्रमण करता है तो रक्षा की दृष्टि से मारना यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा जो उपकारी प्राणी है, आप ही का उपकार करते हैं, आप ही के साथ रह गए, कुत्ता आपके घर की वो करता है, चौकसी करता है। इसके अलावा गाय आपको दूध देती है, भैंस आपको दूध देती है, बाकी गधा है, घोड़ा है, आपको सवारी देते हैं। इन सब का जब आप उपयोग कर सकते हैं तो जो उपकारी प्राणी है, उपकार का मतलब जो हम पर उपकार करते हैं, जिनके लिए हमको उनका ऋणी होना चाहिए, वी आर इंडिटेड टू देम, उनको नहीं मारें और ना किसी को मारने दें। उन्होंने आगे एक और बात कही कि गाय के दूध घी से जितनी बुद्धि वृद्धि के लाभ होते हैं उतने भैंस के दूध से नहीं होते। स्वामी जी ने स्पष्ट संकेत किया है। उन्होंने गौ करुणा निधि नाम की एक पुस्तक भी लिखी है। उन्होंने कहा गौ जो है ये एक प्रकार की निधि है समाज की, और समाज को इसके ऊपर करुणा करनी चाहिए। करुणा का मतलब दे शुड बी कंपैशनेट विद देम। इसलिए हमारे यहाँ गौ हत्या का निषेध है। और साथ में वो क्यों बता रहे हैं कि हम गौ को क्यों श्रेष्ठ प्राणी मानते हैं, कि दूध तो भैंस भी देती है, दूध गाय भी देती है। गाय के अंदर में वो ममता है और वो वात्सल्य होता है जो भैंस के अंदर नहीं होता। उसका प्रमाण देख लीजिए कि गाय का दूध अगर निकालना है तो बछड़े को छोड़ना पड़ता है। जब तक वो बछड़ा गाय का दूध नहीं पी लेता तब तक गाय का दूध नहीं उतरता। भैंस को इसकी आवश्यकता ही नहीं है, उसमें वो वात्सल्य नहीं है, अंदर में वो फीलिंग नहीं है अपने बच्चे के लिए। तो जिसके अंदर वो बच्चे में फीलिंग नहीं है, दूध में वो गुण कहाँ है? तो भैंस के दूध में जो गुण हैं वो अलग हैं, जो गाय के दूध के गुण हैं वो अलग हैं। आज मेरा विषय नहीं है इसलिए विस्तार से नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो मैं बता सकता हूँ कि गाय के और भैंस के दूध में क्वालिटेटिव डिफरेंस क्या हो सकता है, लेकिन आज का विषय नहीं। स्वामी जी ने ये कहा है, इसलिए उन्होंने कहा कि मुख्य मुख्य उपकारक जो है आर्यों ने इसलिए गाय को गिना है।
साथ में वो ये बता रहे हैं कि जब हमारे यहाँ पे एक बैलेंस था पॉपुलेशन का, जितने हमारे यहाँ पे पशु होते थे उनको कोई मारता नहीं था, वो अपनी मृत्यु को स्वयं प्राप्त होते थे अपनी आयु पूरी करके, या कोई दुर्घटना के कारण मारे जाते थे। तो क्या होता था, पशुओं की जब हमारे यहाँ पे बहुताई थी, बहुताई का मतलब प्लेंटी ऑफ एनिमल्स, एनिमल किंगडम, तो जब वो कहते थे जब बहुत होते थे तो हमारे यहाँ अन्न भी बहुत होता था, हमारे यहाँ पुष्प आदि के फल भी बहुत होते थे, वृक्ष भी बहुत होते थे, सारी जितनी हमारी वेजिटेटिव ग्रोथ है उस सबको बहुत फर्टिलाइजर इसीलिए मिलता था कि सारे जानवर जो हैं वो जंगल के अंदर में बहुत संख्या में होते थे। और उन्होंने कहा जब से हमारे यहाँ ये जो विदेशी आए हैं और ये स्वभाव से मांसाहारी हैं, इन लोगों ने पशुओं को मारने का चलन हमारे यहाँ आरंभ किया। इसमें क्रिश्चियन भी हैं, इसमें इस्लाम भी है। तो जब से ये आया तब से पशुओं की हमारे यहाँ हत्या होनी आरंभ हुई। उससे पहले भारतीय समाज में पशुओं को कोई बिना कारण के मारता भी नहीं था। हर एक के अंदर हम बोलते हैं आत्मवत् सर्व भीतेषु, जैसी मेरे में आत्मा है ऐसे हर प्राणी के अंदर आत्मा है। इसलिए भी किसी भी प्राणी की हिंसा करना हमारे शास्त्र के हिसाब से निषेध था। तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं सत्यार्थ प्रकाश में, जब से ये विदेशी मांसाहारी लोग हमारे यहाँ आए हैं तब से वो गौ आदि पशुओं के मारने वाले और मद्यपान करने वाले राज्य अधिकारी बने हैं, तब से आर्यों के दुख की बढ़ती ही होती जाती है। ये आर्य जाति जब ही से कष्ट में है जब से विदेशियों का यहाँ पर आना आरंभ हुआ। उसके लिए आगे वो क्या कह रहे हैं कि चाणक्य नीति में एक वाक्य है, नष्टे मूले नैव फलम च पुष्पम। आप किसी वृक्ष की अगर जड़ काट देंगे तो क्या होगा, ना उसमें कभी फल आएगा ना फूल आएगा। इसलिए उन्होंने कहा जब वृक्ष का मूल ही काट दिया तो फल फूल कहाँ से आएंगे। आर्य जाति की यही सबसे बड़ी आज त्रासदी है। बिगेस्ट ट्रेजेडी ऑफ आवर आर्य नेशन नाउ इज only that we have not been honoring our flora and fauna। जब इस तरह की स्थिति होगी, इतना हमारे यहाँ पे इम्बैलेंस होगा, तो फिर उसका दंड तो हम भुगत ही रहे हैं। तो ऋषि इसके लिए बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं, जितना भी हिंसा और चोरी, विश्वासघात, छल आदि पदार्थ से प्राप्त होकर भोग करते हैं। शुरू में आपको इसका जब हेडिंग बताया था तो बताया था कि आचार और अनाचार, साथ में ये बताया था कि भक्ष्य क्या है और अभक्ष्य क्या है। भक्ष्य का मतलब है क्या खाने योग्य है और क्या खाने योग्य नहीं है। तो अब वो भक्ष्य की बात बता रहे हैं। वो ये बता रहे हैं हिंसा से किया हुआ कोई भी भोजन, चोरी से किया हुआ भोजन, विश्वासघात से किया हुआ और छल से किया हुआ। मैं यहाँ पे एक स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ। जब भी किसी प्राणी की हिंसा की जाती है खाने के उद्देश्य से, उसकी जड़ में सबसे पहले विश्वासघात होता है। उस प्राणी के ऊपर में हाथ फेरते फेरते छुरी चला देती है। विश्वास पहले अर्जित करते हैं और फिर उसके साथ घात करते हैं। बिना छल के किसी प्राणी को आप गोली नहीं मार सकते हैं, बिना छल के उसकी हिंसा नहीं कर सकते हैं। तो जितने भी पशु मारे जाते हैं, पक्षी मारे जाते हैं, ये मान लीजिए निश्चित रूप से वो छल के, कपट के, विश्वासघात के उसी के परिणाम होते हैं। उसके बिना तो मारे ही नहीं जा सकते। तो उन्होंने क्या कहा है, हिंसा, चोरी, विश्वासघात, छल आदि पदार्थों से जिस चीज का हम भोग करते हैं वो अभक्ष्य है। तो सीधा सीधे बात है, जितनी वेजिटेटिव ग्रोथ है वो हमको प्यार से मिलती है, और जितना हमारे को नॉन वेजिटेरियन मिलता है वो किसी भी प्रकार से प्यार से तो मिलता नहीं है। मरे हुए को तो खाता भी कोई नहीं है। खाता भी किसको है, जिंदा को मार के खाता है। और जिंदा को मारने के लिए कोई प्यार से बुला के तो मारता नहीं है, छल कपट से ही मारता है। तो इन सब चीजों को अगर हम सूक्ष्म विश्व वो करें एनालिसिस, तो हमको खुद समझ में आने लगता है कि स्वामी जी ने कहा ये अभक्ष्य है, ये खाने योग्य नहीं है। और साथ में उन्होंने क्या कहा कि इसके अलावा जो धर्मादि अहिंसा आदि कर्मों से प्राप्त होता है भोजन, वो भक्ष्य है। तो एक प्रकार से उन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया कि जो किसी की हिंसा करके आएगा वो अभक्ष्य। तो हमारे को ये कहना है कि मांसाहार का विरोध किया, मांसाहार का विरोध नहीं किया, उन्होंने छल कपट का विरोध किया। और छल कपट ये मनुष्य के दुर्गुणों में माना जाता है, सद्गुण नहीं होते। साथ में उन्होंने इसका स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने कहा भक्ष्य और अभक्ष्य की एक परिभाषा और है। जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो जो वैद्य जी हैं, डॉक्टर साहब हैं, वो ये बताते हैं कि इसको क्या क्या परहेज करना है, ये इस बीमारी में नहीं खाना है। तो उन परिस्थितियों में उस बीमारी की हालत में उस व्यक्ति के लिए वो अभक्ष्य है, वो नहीं खाना है।
तो वैदिक शास्त्र के अनुसार भक्ष्य अभक्ष्य दूसरा होता है और शास्त्रों के अनुसार भक्ष्य अभक्ष्य अलग होता है। तो उन्होंने कहा जो वैद्य बताता है उस समय मरीज को केवल अपने चिकित्सक के परामर्श के अनुसार ही भक्ष्य और अभक्ष्य की चिंता करनी है, लेकिन सामान्य जीवन में किसी की भी हिंसा करके विश्वासघात छल कपट से कुछ भी ग्रहण करना, वो चोरी भी उन्होंने लिखा है, वो चोरी भी एक प्रकार की हिंसा है। किसी व्यक्ति का हम लूट के माल लिया है वो भी एक प्रकार की हिंसा है, खाली जान लेना ही हिंसा नहीं है। तो हिंसा की जो अगर परिभाषा हम पढ़ें तो हिंसा के द्वारा प्राप्त किया हुआ कोई भी पदार्थ अभक्ष्य है, वो स्वामी जी ने बता दिया। अब स्वामी जी से किसी ने ये पूछा कि बताइए जब एक साथ भोजन करते हैं जैसे हमारे इस्लाम में है, वहां पे सबसे ज्यादा प्यार और भाईचारा किस बात में बताते हैं कि लोग एक थाली में बैठ के 10-20 लोग खाना खाते हैं। हमारे यहाँ भी कई दफे बहुत प्यार उमड़ता है तो हम 2 जने बैठ के भोजन कर भी लेते हैं। तो ऐसा सामान्य सा प्रश्न स्वामी जी से पूछा किसी ने कि बताइए एक साथ खाने में कुछ दोष है या बुराई या नहीं है। तो स्वामी जी कह रहे हैं दोष है। क्यों दोष है? किस किसी भी 2 व्यक्तियों का स्वभाव एक नहीं होता। जब उनका स्वभाव नहीं मिलता है तो फिर उनको भोजन एक साथ करके नहीं खाना चाहिए। फिर उन्होंने क्या कहा, भोजन के अंदर में एक उच्छिष्ट बोलते हैं जिसको हम जूठन बोलते हैं। उन्होंने कहा कि उच्छिष्ट जो है ना किसी का खाना चाहिए ना किसी को देना चाहिए। तो साथ खाने के अंदर तो उन्होंने बस इतना बताया कि अगर हाँ किसी ने पूछा कि अगर स्त्री पुरुष पति पत्नी है, बहुत आपस में स्नेह है, वो कभी खा लें तो क्या बात है। तो स्वामी जी ने कहा कि मैं इसका निषेध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये अपेक्षा कर रहा हूँ कि स्त्री पुरुष के भी अगर गुण कर्म स्वभाव मिलते हैं तो कोई हानि नहीं है, लेकिन अगर नहीं मिलते हैं तो उनको मिलाने का प्रयास करके फिर साथ में भोजन करें तो भी हानि नहीं है। लेकिन अगर उनके गुणकर्म स्वभाव ही नहीं मिलते तो शास्त्र के अनुसार तो निषेध है, लेकिन व्यवहार की दृष्टि से अपने व्यवहार को सुधारो। और पति पत्नी का अर्थ यही है कि जल में जल ऐसा मिल जाए कि उसको भिन्न ना किया जा सके। तो अगर आदर्श पति पत्नी है, आदर्श दंपत्ति हैं, गुणकर्म स्वभाव मिलते हैं, साथ बैठ के भोजन करें, कोई आपत्ति नहीं है। इससे ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच मुझको तो नहीं लगता कि कोई धर्माचार्य इसके बारे में कह सकता है। किसी ने ये कहा महाराज आप तो ये झूठ की बात कह रहे हैं, झूठ का विरोध कर रहे हैं। आप ये बताइए जो मक्खियों का शहद जिसको हनी बोलते हैं, आप क्या समझ रहे हैं ये झूठन नहीं है? हम इस झूठन को खा लें? बछड़ा जो है जब गाय का थनों में दूध पीता है, उसके बाद में वो छोड़ता है, फिर हम उस दूध को निकाल के पीते हैं, तो क्या ये झूठन नहीं है? बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। स्वामी जी ने उसको बड़ा स्पष्ट कहा। उन्होंने कहा ये आपका प्रश्न गलत है। मधुमक्खी उस शहद को जिसको वो छोड़ देती है उसका स्वयं भोग नहीं करती है, इसलिए वो उसका उच्छिष्ट नहीं है। बछड़े के लिए उन्होंने कहा कि बछड़ा थन से निकला हुआ जो बाहर दूध है, जो थन उसके मुंह में आया, केवल उतना दूध पी सकता है। जो उसके अंदर रह गया गाय के, उस दूध से बछड़े का कोई संबंध नहीं है। इसलिए ये आवश्यक है कि दूध निकालने वाला थनों को अच्छी तरह से धो के साफ करके अपने बर्तन को साफ करके जब उसके दूध को निकाले। इसलिए इसमें झूठन कहीं नहीं है, क्योंकि बछड़े के पिया हुआ दूध बछड़े के उदर में चला गया और जो वो नहीं पी सकता था वो गाय के थन में अभी शेष बाकी है, इसलिए वो झूठन नहीं है। बड़ा स्पष्टीकरण टेक्निकल दे रहे हैं। इसी प्रकार से शहद का भी दे रहे हैं। तो जब वो ये कह रहे हैं कि उच्छिष्ट जो है इसका विधान जो है वो हमारे शास्त्रों में नहीं है। बंधुओं मैंने आपको जितना ये विषय है ये दशम समुल्लास का पूरा विषय आपके सामने स्पष्ट कर दिया। विषय बहुत लंबा था लेकिन समय की सीमाओं में बांध के मैंने इसको बहुत ही कंसाइज करके आपको साथ में शेयर करने का प्रयास किया। हमने आज छठा समुल्लास भी लेना। जितना भी हमारे पास समय बचा है इस समय के अंदर में मैं छठे समुल्लास का भी बहुत संक्षेप में और बहुत ही शीघ्रता से आपके सामने इसकी चर्चा करने वाला। छठा समुल्लास जो है वो राजधर्म के विषय में बताता है कि राजाओं का धर्म क्या होना चाहिए। उसके लिए बड़ी स्वतंत्र उन्होंने सिंतर बात की है स्वामी जी ने। उन्होंने कहा कि राजा को, क्योंकि स्वामी जी प्रजातंत्र के पोषक थे, वो राजतंत्र नहीं थे। उन्होंने ये कहा कि राजा को स्वतंत्र अधिकार नहीं होना चाहिए। इसका अर्थ क्या हुआ कि स्वामी जी प्रजातंत्र के पोषक थे। राजतंत्र में तो होता ही एक व्यक्ति है, वहां तो एक आदमी डिक्टेटर होता है और डिक्टेटर बाकी सब लोग उस राजा को भगवान के रूप में पूजते आए हैं। आज तक हमारे यहाँ की परंपराएं रही हैं।
लेकिन राजतंत्र ने अपनी प्रजाओं का पालन भी पोषण भी किया है। ये हमारे त्रेता और उस युग की बात है। लेकिन कल की हुई महाभारत के बाद हमारे देशी राजा रजवाड़ों ने अपनी प्रजा का बहुत शोषण किया। ये हालत कर दी कि उन्होंने कि वो एक प्रकार से ऐसे हो गए जैसे स्वामी और उनका मालिक, स्वामी और उसकी सेवक। और इसलिए विद्रोह हुए हमारे यहाँ। स्वामी जी क्या कह रहे हैं, राजा को स्वतंत्र अधिकार नहीं मिलना चाहिए, निरंकुश हो जाएगा। निरंकुश का मतलब अनब्रिडल्ड हो जाएगा, उसके ऊपर किसी का अंकुश नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि राजा को ये चाहिए कि 3 सभाएं होनी चाहिए। पहली सभा होनी चाहिए राजार्य सभा, जो राज कार्य की सारी जो है उसके लिए राजा को परामर्श दे और उनके परामर्श से ही राजा कार्य करे। एक विद्यार्य सभा जो एजुकेशन से जुड़ी हुई हो, सारे देश के अंदर में अपनी प्रजा के साथ जो विषय है विद्या का, वो राजार्य सभा के विद्वान लोग देखें। और तीसरी उन्होंने कहा है धर्मार्य सभा, जितने भी विषय हैं धर्म से जुड़े हुए हों, उचित है अनुचित है, इस सारे का जो करने वाला न्याय व्यवस्था, वो भी सारी उसी के साथ में। तो उन्होंने कहा 3 प्रकार की सभाओं के अंतर्गत राजा को होना चाहिए। और अगर ये स्वतंत्र होगा राजा, तो वो अपनी प्रजा का भी और राज्य का दोनों का नाश करेगा। तो इसका मतलब स्पष्ट हो गया कि स्वामी जी इस प्रकार की जो हमारी आज जो डेमोक्रेटिक सेटअप है, उस डेमोक्रेटिक सेटअप के बहुत बड़े पक्षधर थे। उन्होंने ये कहा है कि जब तक और राजा प्रजा धार्मिक होते हैं तब तक राज्य की वृद्धि होती है। तो धर्म जो है उसको उन्होंने ये कहा है कि धर्म राज सत्ता के ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो होता है तो फिर राज्य सत्ता जो है दूषित हो जाती है। लेकिन उन्होंने क्या कहा है कि धर्म से धर्म को, दंड को धर्म कहते हैं। जितनी दंड व्यवस्था प्रबल होगी उतना धर्म का पालन राज्य में अधिक होगा। आज हमारे यहाँ जो स्थिति क्या है, हमारे भारत में तो इस बात की बहुत ही भयंकर पीड़ा हम सब लोगों को है। किसी भी व्यक्ति को लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट तक भी न्याय नहीं मिलता है। जब उसको न्याय नहीं मिलता है तो अपराध की वृत्ति बढ़ती है, दोषी लोग खुले घूमते हैं। जब दोषी लोग खुले घूमते हैं तो क्या होता है, अपराध करने की वृत्ति बढ़ती है। और हमारा जो मीडिया है वो दोषी को, जो कल्प्रिट है, जो एक्यूज है, जो मर्डरर है, उसको ग्लोरीफाई करता है, क्योंकि न्यूज बनानी होती है सेंसेशनल। तो वो अपना एक प्रकार से सामाजिक धर्म का निर्वाह नहीं कर रहा मीडिया हमारा, एक प्रकार से सामाजिक द्रोही है वो। लेकिन हमारी जब न्याय व्यवस्था भी दूषित हो जाए, दंड व्यवस्था निश्चित हो जाए, आज हमारे देश में या दुनिया के अंदर बहुत सी जगह जहां भी ये कहा जाता है कि स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, रेप जैसी घटनाएं हो रही हैं, क्यों होती हैं? क्योंकि जो रेपिस्ट है उसको फांसी नहीं होती, 20 साल लग जाते हैं, उसको बेनिफिट ऑफ डाउट भी मिल जाता है। तो क्या होगा, ऋषि ने कहा है कि दंड को ही धर्म कहते हैं। और अगर दंड व्यवस्था हमारी दूषित हो जाए तो सारी वर्ण व्यवस्था दूषित हो जाएगी, सारी मर्यादाएं छिन्न भिन्न हो जाएंगी। इसलिए उन्होंने कहा है कि हर धर्मार्य सभा, राजार्य सभा, हर एक के अंदर न्यूनतम 10 विद्वान होने चाहिए और वो धर्म पूर्वक इन सभाओं की व्यवस्था करें। साथ में वो क्या कह रहे हैं, एक बड़ी गंभीर बात है जो आज की परिस्थितियों के लिए है। उन्होंने कहा है कि किसी भी देश के अंदर राजा या राजा के साथ में जितने भी सभासद हैं, तो मान के चलिए कि जैसे देश का राष्ट्रपति, देश का प्रधानमंत्री, और उसके साथ में जो उसकी लोकसभा और राज्यसभा है, पार्लियामेंट है, और साथ में दूसरी जो है हमारा अपर हाउस है, और जितनी हमारी असेंबलीज हैं, उन सब के लिए उन्होंने क्या कहा है कि किसी भी देश में केवल स्वराज में, स्वदेश में उत्पन्न लोग ही राज्य व्यवस्था के अधिकारी होने चाहिए। इससे बड़ा स्पष्ट होता है जो हमारे यहाँ पे प्रयास हुआ कि जी सोनिया गांधी जी को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बना दिया जाए। जिस आदमी का जन्म नहीं हुआ स्वदेश में, उसको राज्य का, इस प्रदेश का राज्य मिलने का अधिकारी शास्त्रों के अंदर में निषेध है। तो ये बात यहाँ पे बिल्कुल जिसको कहना एकदम अनडिबेटेबल हो गई है। इसके बारे में राजनीति करने की जरूरत क्या है? आज जो लोग राजनीति करते हैं वो धर्म शास्त्रों की, समाज शास्त्र की और राष्ट्र के धर्म की व्याख्या को अवहेलना करके एक प्रकार से उसका अपमान करने का प्रयास करते हैं। ऋषि ने स्पष्ट कर दिया कि केवल स्वदेश में उत्पन्न व्यक्ति ही राज्य करने के अधिकारी हैं। और साथ में उन्होंने कहा कि अगर किसी भी सभाओं के अंदर में एक मत सबका ना बने तो उसके अंदर में बहुमत के हिसाब से निर्णय लिए जाए। राजनीति के बारे में स्वामी जी क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि 3 प्रकार के राजा के वो होते हैं प्रजा के अंदर लोग, या तो उसके मित्र होते हैं, या अन्य अन्य जो राजा होते हैं उसमें कुछ मित्र होते हैं
कुछ शत्रु होते हैं, कुछ उदासीन होते हैं। उन्होंने कहा राजनीति का ये तकाजा है कि मित्रों के साथ मित्रता को बना के रखे, जिसको आजकल हम बोलते हैं कि हम अपने पड़ोसी देशों के साथ मैत्री रखते हैं और रखनी चाहिए। समाज के अंदर भी यही होता है कि हम अपने पड़ोसी के साथ में अच्छे संबंध रखें, ये शास्त्रों का आदेश है। बिगड़ते हैं आजकल संबंध, वो अलग विषय है। और भारत में तो संबंध बिगड़ता है अगर पड़ोसी से है तो केवल गाड़ी की पार्किंग को लेके बिगड़ता है, इससे बड़ा कोई कारण नहीं होता। लेकिन वही इतना बड़ा कारण हो जाता है कि वो एक दूसरे के शत्रु हो जाए। स्वामी जी कह रहे हैं कि राजा का ये धर्म है, ये राजनीति है कि वो अपने मित्र को कभी खोए नहीं, उसकी मित्रता का सम्मान करे और हर प्रकार से संभव प्रयास करके मित्रता को सुरक्षित रखे। साथ में क्या कह रहे हैं, जो शत्रु है, शत्रु के साथ में पर्याप्त सावधानी बरते, क्योंकि शत्रु जो है उसके ऊपर में मित्रता का संबंध करने का कोई कारण नहीं है। तीसरी बात क्या कह रहे हैं, जो व्यक्ति उदासीन है, उदासीन का मतलब इनडिफरेंट है, ना मेरा वो शत्रु है ना मेरा वो मित्र है। तो राजनीति हमारे को ये कहती है कि प्रयास करके उदासीन व्यक्ति को अपने मित्र की श्रेणी में लाने का प्रयास करिए, शत्रु मत बनने दीजिए। ये है शक्ति का संचय करने का राजनीति का एक बहुत बड़ा उन्होंने फंडामेंटल वो बताया, तो जिसको बोलेंगे एक पॉलिटिकल फंडा, कि अपनी राजनीति में मित्र, उदासीन और क्षत्रिय, इसके अंदर में शत्रुओं की संख्या अधिक नहीं बढ़ने देनी चाहिए। साथ में उन्होंने क्या कहा कि कहीं भी अगर मान लीजिए पड़ोसी के साथ में हमारे युद्ध की परिस्थिति होती हो, तो स्वामी जी स्पष्ट कर रहे हैं कि युद्ध का अगर अवसर अनुकूल नहीं है तो यह राजा का कर्तव्य बनता है। अगर लगता है कि मेरे पास पर्याप्त शक्ति नहीं है या अन्य अन्य कोई भी कारण है, उन सब कारणों से लगता है, तो युद्ध को टाल के उसके साथ में चाहे अस्थायी मैत्री संबंध बनाने का प्रयास करे, ऊपर से कुछ भी करे पर साम दाम दंड और भेद की नीति का पालन करे। और इसलिए उन्होंने ये भी कहा है कि युद्ध विद्या के अंदर में अपने देश की प्रजा के हर व्यक्ति को, जितने उसके सभासद हैं, तीनों सभाओं के जितने पार्लियामेंटेरियंस हैं, जितने उसके सारे के सारे एमएलए हैं, मेंबर्स ऑफ असेंबली, सबको उन्होंने कहा युद्ध का प्रशिक्षण अनिवार्य होना चाहिए। कितनी स्पष्ट बात है ये षष्ठम समुल्लास में, कि राजा के अंदर के अंतर्गत आने वाली सब प्रजा युद्ध के कौशल से प्रशिक्षित होनी चाहिए। मुझको लगता है शायद दुनिया में एक स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जहाँ पे हर व्यक्ति के लिए शायद ये मिलिट्री की ट्रेनिंग जो है वो अनिवार्य है। बाकी बहुत से देश हैं, अमेरिका में भी सुना है बहुत कुछ है, मुझे बहुत डिटेल नहीं मालूम, आप में से कभी भी कोई मुझे बाद में एनलाइटन कर सकता है। लेकिन स्वामी जी का तो स्पष्ट आदेश है कि वेदों का आदेश है कि राजा के अंतर्गत सारी प्रजा युद्ध के कौशल में प्रशिक्षित होनी चाहिए। दूसरा उन्होंने क्या कहा, ये दंड व्यवस्था क्या होनी चाहिए। दंड व्यवस्था जनरली एविडेंस पे होती है। तो एविडेंस क्या होती है, एविडेंस वो कि जिस आदमी ने उसको फिजिकली देखा हो, जिसको ये कहते हैं कि ये इस आदमी ने प्रत्यक्षदर्शी है, ये उसका वहां पे इसने देखा है, इसलिए ये इसका अपना आके आपको वो दे रहा है कि मैंने इसको अपनी आंखों से देखा है। तो वो क्या कह रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति झूठी साक्षी दे तो उसको उतना ही दंड मिलना चाहिए जितना अपराधी को दंड मिलता है। साथ में स्पष्टीकरण एक और दे रहे हैं कि अपराध जो है जिस शरीर के अंग से किया गया हो, किसी आदमी ने जैसे बलात्कार किया, जिस अंग के कारण उसने ये बलात्कार करने की सामर्थ्य ली है, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि जिस अंग से अपराध हुआ हो उस अंग का छेदन करना ये शास्त्रों का विधान है। दूसरा उन्होंने कहा कि अगर स्त्रियों से जुड़ा हुआ विषय है तो उसके अंदर जो एविडेंस होनी चाहिए, जिसको हम बोलते हैं कि उसने देख के हमारे को साक्षी दे रहा, केवल स्त्रियों की होनी चाहिए, क्योंकि ये गोपनीय विषय है। पुरुषों को साक्षी के लिए बुला के स्त्रियों की जो उनकी अपनी जो एक मॉडेस्टी है, उस मॉडेस्टी को डिफाइन नहीं करना चाहिए, ना डिफाइल करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि स्त्रियों के विषय में साक्षी स्त्रियों की होनी चाहिए, इसलिए जो जिस वर्ण का है सामान्यतः साक्षी उसी वर्ण की होनी चाहिए, जिससे न्याय की व्यवस्था ठीक प्रकार से हो सके। नहीं तो कोर्ट इन्फ्लुएंस में आ जाती है। आज भी बोला जाता है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में ये हो गया वो हो गया। स्वामी जी उस सब का विरोध कर रहे हैं। स्त्रियों के विषय में साक्षी स्त्री की, जो भी जिस वर्ण का अपराधी है उसके अंदर साक्षी उसी वर्ण का। बाद में वो ये कह रहे हैं कि दंड व्यवस्था इतनी कठोर होनी चाहिए, जैसा मैंने अभी बताया कि ये बलात्कार जिसको हम रेप बोलते हैं, आज तो बड़ा कॉमन हो गया। ये तो एक ऐसा था, बड़ा एबरेशन था, समाज में बहुत कभी सुनने को भी नहीं आता था तो समाज घृणा की दृष्टि से देखता था। आज एक ऐसा सामान्य हो गया, अखबार को पढ़ते हैं तो अखबार भरा हुआ होता है।
कारण क्या है कि दंड व्यवस्था इतनी कमजोर है, इतनी लचर है कि किसी को दंड ही नहीं मिलता। 20-20 साल तक, 30-30 साल तक दंड नहीं मिलता। जब तक वो मिलता है तो पता है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ को इसको दंड दिया, इतनी तो सजा वो वैसे ही भुगत चुका है ट्रायल में, तो चलिए छोड़ दो इसको। स्वामी जी कह रहे हैं कि जितना भी जो व्यक्ति जितना प्रतिष्ठित है उसको दंड उससे उतना ही अधिक मिलना चाहिए। उसके लिए उन्होंने एक बताया कि अगर मान लीजिए किसी अपराध के लिए किसी शूद्र को 1 रुपए का दंड मिलता है, तो उसी अपराध के लिए वैश्य को 10 रुपए का दंड होना चाहिए, क्षत्रिय को 100 रुपए का दंड होना चाहिए, और ब्राह्मण है तो 1,000 रुपए का दंड होना चाहिए। अपराध वही है, पर चूंकि वो व्यक्ति उतना ही प्रतिष्ठित है, तो समाज में जो व्यक्ति जितना प्रतिष्ठित है और जितना भी जिसको बोलते हैं इन्फ्लुएंशियल है, आज तो क्या स्थिति हो रही है, जितना इन्फ्लुएंशियल है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही केस को फैसला नहीं होने देता। और इसलिए हमारे यहाँ न्याय की व्यवस्था लचर हो गई। और ऋषियों की जो मान्यता है, वेदों की मान्यता तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जो व्यक्ति जितना प्रतिष्ठित है, दंड की मात्रा उसके लिए उतनी ही गुनी ज्यादा होनी चाहिए। और साथ में एक उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति किसी निरपराध को मारता है, जैसे हमारे यहाँ पे आतंकवादी पहलगाम के अंदर घटना हुई है, इतने लोगों को मार दिया, इनोसेंट लोगों, उन्होंने कहा निरपराध व्यक्ति को मारने वाले के बारे में राजा को सोचना बाद में चाहिए, पहले उसको मार देना चाहिए। हमारे यहाँ क्या होता है, पहले ट्रायल होगा कोर्ट में, उसके लिए 20-20 साल तक फैसले नहीं होंगे, यही नहीं पता लगेगा कि इसने मारा या नहीं मारा। और ऋषि क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं वेदों का आदेश है उसके बारे में सोचना बाद में, मारना पहले। पता लगा इसने निरपराध लोगों को मारा है। साथ में उन्होंने ये कहा है कि शत्रुओं के साथ कैसा व्यवहार करना, उसके बारे में बहुत स्पष्टीकरण दिया। आज समय मुझे अनुमति नहीं दे रहा इसलिए मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन आप लोग इसको पढ़िएगा सत्यार्थ प्रकाश में कि शत्रुओं के साथ राजा को कैसे व्यवहार करना, ये हमारे राजधर्म और राजनीति के अंतर्गत आता है। साथ में उन्होंने कहा कि मान लीजिए युद्ध हो गया, जो हमारे युद्ध बंदी हैं, जो हमारे वॉर वो है, जो हमारे वॉर क्रिमिनल्स हैं, जिनको हमने पकड़ के बंदी करके लाए, उनके साथ व्यवहार कैसा करना, इसके बारे में भी वेदों में स्पष्ट लिखा। कोई चीज अछूती नहीं है। जो शत्रु के साथ मिले हुए हैं, जैसे हमारे यहाँ पे हो रहा है, पकड़ा गया आदमी कि वो भारत के पहलगाम की जो घटनाएं हैं सिंदूर की, वो नेवी का आदमी बाहर वाले को किसी को बेच रहा है। तो जिस भी देश के अंदर कोई भी व्यक्ति जो देशद्रोही हो, शत्रुओं से मिला हुआ हो, उसके साथ कैसा व्यवहार करना, इसके लिए भी स्पष्ट आदेश सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से वेदों में जो लिखा है वो ऋषियों ने हमारे सामने स्पष्ट किया है। एक बात और उन्होंने कही है, उन्होंने कहा कि जो हमारी सभाएं हैं, उन सभाओं में जो अन्याय अन्याय होता देख के भी मौन रहे, चुप रहे, बोले नहीं, तो एक प्रकार से वो व्यक्ति सत्य न्याय के विरुद्ध नहीं बोला, वो महापापी माना जाता। आज हमारे यहाँ क्या होता है, अधिकांश जो सज्जन शक्ति है वो कोई भी अपराध होते हुए देख के किसी प्रकार से प्रतिकार नहीं करती है, चुपचाप देखती है कि तेरे को कोई मतलब नहीं है, जिसके साथ है वो अपना आप भुगत रहा है। सरकार देखेगी, पुलिस आके देखेगी, समाज उसके लिए कुछ करता नहीं है। तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं, वेदों का आदेश है, जो इस प्रकार से अन्याय को अपने सामने आंखों के सामने होते देखता है, कोर्ट के अंदर जज समझते हुए कि सत्य क्या है, उसके बाद भी सत्य का ढोंग का नाटक करते हुए और वो उसको बेनिफिट ऑफ डाउट दे के बरी कर देता है, तो इसका मतलब वो है कि वो भी व्यक्ति उतना ही अपराध का भागी है जितना वो अपराधी है जिसको हमने पकड़ रखा है। तो उन्होंने ये कहा है कि वो व्यक्ति महापापी है और एक प्रकार से मृतक समान है। ही इज एज गुड एज ए डेड पर्सन। जिसकी आत्मा मर गई वो मरा ही है, शरीर से जिंदा है लेकिन आत्मा मर चुकी है, सत्य के साथ खड़ा नहीं होता है, मूक दर्शक के भांति देखता है। तो उन्होंने कहा वो महापापी है, ऐसी सारी सभा को पाप लगता है। और सबसे अंत में, क्योंकि विषय तो जितना भी है समय अनुमति नहीं देता, तो मैं केवल एक बात बताना चाहता हूँ। षष्ठम समुल्लास में स्वामी जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में ये लिखा है कि धर्म मनुष्यों के बहुत तरह के लोगों ने बनाए हुए हैं, पर धर्म जो है वो 5 प्रकार का होता है। वो इस षष्ठम में नहीं लिखा, लेकिन षष्ठम में जो उन्होंने निष्कर्ष दिया मैं वो बताऊंगा आपको। 5 प्रकार का क्या होता है, मेरा एक व्यक्तिगत धर्म होता है कि मेरा अपना व्यक्तिगत लाभ हानि किससे गवर्न है। फिर मेरा एक अपना परिवार धर्म होता है, मेरी हानि होके भी मेरे परिवार को अगर लाभ हो सकता हो तो मेरा धर्म है परिवार धर्म को निभाना।
मैं अपने व्यक्तिगत धर्म की बलि चढ़ा के भी अपने परिवार की रक्षा करूं। फिर मेरा एक समाज धर्म होता है। मेरे एक परिवार को कष्ट उठा के समाज को अगर संरक्षण मिल सकता हो, तो मनुष्यों का ये कर्तव्य है कि वो समाज धर्म को निभाएं। समाज धर्म से भी ऊपर होता है राष्ट्र धर्म। राष्ट्र धर्म का मतलब है संपूर्ण राष्ट्र की रक्षा के लिए किसी एक समाज की चिंता नहीं करनी है। जैसी हमारे यहाँ पे एक घटना हो चुकी है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब हमारी सरकार थी भारत के अंदर, कंधार का एक प्लेन जो है वो हाईजैक हुआ था। वो हाईजैक होके अमृतसर में रोक भी लिया गया। उसके बावजूद भी वो हाईजैकर्स के प्रेशर में यहाँ से वो कंधार ले जाया गया। क्यों? कि जो उसके अंदर में परिवार के लोग बैठे थे, उनके परिवारजनों ने सरकार के सामने इतना भयंकर प्रदर्शन किया और उस समय की सरकार निर्णय नहीं ले पाई। स्वयं जसवंत सिंह उस समय हमारे विदेश मंत्री थे, उनको प्लेन के साथ भेज के हाईजैकर्स के उनको कहा उनकी शर्तें मनवाओ, पर किसी तरह से ये लोग सुरक्षित रहें। 200 लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उस समय की सरकार ने इतना गलत निर्णय लिया कि वो सारे आतंकवादी आज तक भी पंजाब पाकिस्तान के अंदर में ये सारी घटनाओं करने के लिए वहां जिंदा हैं, जिनको अजहर मसूद और हम और किस किस नाम से जानते हैं। कितनी बड़ी हानि हुई है। तो स्वामी जी ने श्रेष्ठम समोल्लास में कहा है कि राजा के लिए केवल एक ही धर्म होता है, वो होता है राजधर्म। और राजधर्म क्या होता है? जो राष्ट्र धर्म होता है। जो राष्ट्र का धर्म है वही राजधर्म है, और राजा के लिए अन्य कोई धर्म नहीं है। मैंने आपके सामने दशम समुल्लास और श्रेष्ठम समुल्लास की जितना भी प्रयास करके संक्षिप्त करके आपके साथ में बांट सकता था, मैंने बांटने का प्रयास किया। मेरा अनुमान है कि जितने भी लोग हैं उन्होंने बड़े मनोयोग से इसको सुना होगा, और जिसने सुना होगा वो इस बात से जरूर सहमत होगा कि ऋषि दयानंद के विचार बहुत ही प्रगतिशील। ही वॉज ए डायनेमिक पर्सनैलिटी। जरा भी उनके अंदर में रूढ़िवादिता नहीं थी, और समय की और देश की परिस्थिति के हिसाब से उन्होंने अपने सारे वेदों से निकाल निकाल के हमको उद्धरण दिए हैं मनुष्य मात्र के लाभ के लिए। तो आज मैंने इन दोनों के बारे में जो दिया, उस सबको आपको निवेदित करते हुए अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। ओम। Vijay ji, thank you so much. Very, very elaborate, very detailed. And all important points have come up on both chapter 10 and chapter 6. Has anybody any questions, any clarifications? We have 10-15 minutes to go. No, can I chip in? Sure. Yeah, I am Satish Nagpal. I am from Arya Samaj Mandir, Dwarka in New Delhi. Achha, okay. See, the way Acharya Ravidev Gupta ji he has deliberated, जिस हिसाब से उनका उद्बोधन रहा, I think all of us would have gained a lot. Means he had been very practical in his approach, and in a simpler way he has been able to explain. तो मैं खाली एक चीज इसमें फोकस करना चाह रहा था, like at आर्य समाज मंदिर द्वारका, we are also very much impressed the way our Swami Dayanand Saraswati had come out with this Satyarth Prakash. और हमने क्या किया था last year, like in every Arya Samaj, I think, I don't know what happens in US, but in India, whenever Saptaik Satsang happens, we carry out Yajna or Havan first, then there is a small bhajan, then there is a pravachan by a speaker, and that's the way the things move. तो हमने इनके बीच में ना 15 मिनट का टाइम रखा for Satyarth Prakash. Now, see, later on we realized that 15 minutes for one Sambulas, that is not going to be enough. So we are coming out with a detailed version also, where we'll be omitting the speaker portion and we'll be coming out with one Sambulas in one Sunday. So what we did was, it was so interactive. You see, we used to announce first, like Acharya ji has mentioned that first Sambulas is the difficult one, so it should be taken out later. So that is the way we proceeded. पर ये जैसे रविदेव जी ने 10वें और 6ठे समोल्लास से शुरू किया, वैसा हमको उस वक्त आइडिया नहीं था, तो वी स्टार्टेड विद सेकंड समोल्लास। दूसरे से शुरू करके हम 7-8 तक गए। फिर अनिल कक्कड़ जी साथ हैं स्क्रीन पर, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए थे इस पूरे प्रोग्राम में। तो 7-8 समोल्लास के बाद देन वी केम बैक टू फर्स्ट समोल्लास। तो इतना इंटरेक्टिव था, क्योंकि हम जो है ना, प्रीवियस संडे वी यूज्ड टू अनाउंस के नेक्स्ट संडे दिस जेंटलमैन और लेडी वुड बी डेलिब्रेटिंग ऑन दिस पर्टिकुलर समोल्लास। तो वो पढ़ के आते थे घर से, और फिर क्वेश्चन आंसर सेशन होता था, ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता था हम में से कोई, और बाकी सब लोग क्वेश्चन आंसर सेशन में पार्टिसिपेट करते थे। तो वो एक वी मेड ए गुड बिगिनिंग, लेकिन इसको हमने आगे ले जाना है,
और जैसे आर्य रविदेव जी का ये उद्बोधन चल रहा है, अभी तीन सैटरडे और रहेगा, तो इससे काफी रुचि आई है हम लोगों में, दिल्ली में भी और पूरे इंडिया में और ग्लोबली आल्सो। आप यूएस से इतने लोग जुड़े हैं, तो माय बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू कि हम अपने इस पर्पस में के स्वामी जी का तो प्रिय ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश, इसको पॉपुलर करें, हम खुद भी समझें, क्योंकि आई हैव टू एडमिट दैट आई हैड बीन इन सर्विस फॉर 40 इयर्स। अभी मैं 1-2 साल से ही फ्री हुआ हूँ। अभी तक क्या है, हमको सुपरफिशियल आइडिया था, पर अभी जो है एक जिज्ञासा है डिटेल में उसको आइडिया लेने की। तो इस टाइप के सेशन, जैसे आर्य रविदेव जी ने कहा, तो इस टाइप के सेशन बड़े इंपॉर्टेंट है और बड़े बेनिफिशियल है हम जैसे लोगों के। मेरा जो है धन्यवाद आर्य रविदेव जी को और ऑर्गेनाइजर्स को। एक बहुत अच्छा प्रयास है, तो हम सब लोगों को इसमें आगे भी सफलता मिले, ये हमारी प्रभु से कामना है। धन्यवाद। क्या कोई प्रश्न हो तो बोलें। हाँ, मैं मुकेश कुमार। हाँ जी जी, बहुत अच्छा लगा। पिछली दफा मैं नहीं जुड़ पाया था, तो आज जुड़ा हूँ। पूरा लगभग मैंने सुना है, और आचार्य रविदेव जी ने विद्वान के जो लक्षण बताए हैं, और व्यापार किससे करें किससे ना करें, बहुत सारी चीजें बहुत ही सारगर्भित जो कि सत्यार्थ प्रकाश में छिपी हुई हैं, और हम उनको ठीक से कई दफा नहीं समझ पाते। तो एक बहुत अच्छा सार्थक प्रयास है अमेरिका के द्वारा, और ये जो हमारा स्वाध्याय का एक प्रकल्प है, उसके अंतर्गत आदरणीय आचार्य रविदेव जी बहुत अच्छे से हमें समझा रहे हैं। इसके लिए इन सबका और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, मैं सौरभ बोल रहा हूँ, सौरभ दानी। एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगी कि आपने अटल बिहारी वाजपेयी सरकार की भी जहाँ गलती है वहाँ वो गलती बताई है, उसके हर चीज़ में तारीफ नहीं की है। तो ऐसा नहीं है कि इट्स अ बायस टॉक, तो जो सच्चाई है वो सच्चाई बखान हुई है। धन्यवाद। बात यह है सौरभ, हम को बड़ा निष्पक्ष होना चाहिए जीवन में। अगर कभी भी किसी से गलती हुई है, उस गलती को हम इग्नोर नहीं कर सकते। वो इतना बड़ी गलती थी, एक राज धर्म की अवहेलना थी वो। सही, हम लोग हर बार ज़्यादातर लोग हम लोग डिफेंसिव हो जाते हैं। अगर कोई मोदी के बारे में, बीजेपी के बारे में, अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में कुछ बोलते हैं तो हम डिफेंसिव हो जाते हैं। तो डिफेंसिव होने की जगह से जो निष्पक्ष सच्चाई है वो सच्चाई को बयान करना है। This book should become, it should be spread across the whole country. There should be a lot of discussion. What we are doing in a small group, but I am sure Arya Samaj Arya Samaj has various chapters. So those chapters must conduct such seminars and some series of seminars to explain Satyartha Prakash to all the people. Because it is very relevant, as Ravidev ji said, it is relevant, was not only relevant yesterday, it was relevant today and will also be relevant tomorrow. So it's very important group. So I think I think nobody has any question. We'll take this subject forward next time. So Ravidev ji will announce the date for the third lecture, and we'll go from there. Thank you very much for this excellent presentation, both on chapter 10 and chapter 6. Arya Samaj has been a catalyst for social reform, and that effort should continue. It clarified what caste system is about. There is no discrimination, no untouchability there. It focused on women's rights, women's education. It promotes Vedic values, and rational spirituality, not blind faith-based spirituality, but rational spirituality. So all these are very, very important issues which are very relevant for India's society, not only India, but the whole world. Now, I would request everyone to spread this message to their friends, families, and all, invite them. नेक्स्ट लेक्चर सेकंड और थर्ड समोल्लास पे होना है, जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं। Okay, I think let us call it a day. Yeah. Thank you very much, everyone. I think we should close this one. Thank you. Bye-bye. Thank you.